Yeah, good morning. Am I audible? Hello. Are you not connected yet? सर हेलो. गुड मॉर्निंग सर. सर फरीदाबाद रूम नंबर 2 में कोई नहीं है सर. फरीदाबाद रूम नंबर 2 में कोई नहीं है तो अभी वेट करो. हाँ, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आप कौन बोल रहे हैं? क्या नाम है? सर प्रतीक सिंह. नहीं, वो जो फरीदाबाद से बोल रहे हैं. सर मैं पवन बोल रहा हूँ जी. पवन. नहीं, कोई बात नहीं, आप बच्चों ऑन रखिए वीडियो. ठीक है. ठीक है सर. चलिए. So we discussed about what in the last lecture. The discussion went on for the about the catalyst also, right? And in the previous lecture we have discussed about some important aspects of adsorption, especially when the gases get adsorbed on the surface of the adsorbent, and how the pressure can alter the you can say the extent of adsorption. Extent of adsorption was given in terms of x by m, and x was the mass of the adsorbate, where m is the mass of the adsorbent. So x by m ratio represents the mass of the adsorbate adsorbed on unit mass of the adsorbent, and that is referred as extent of adsorption. And how the extent of adsorption is varied with the change of pressure, that was what we see. At the low pressure region, it is like directly proportional, and we can say x is proportional to p. And in the very high pressure region, this will be x by m will be proportional to p ki power 0. That means it becomes constant, and there is no change after that, and the saturation point is achieved. And in the middle between the low pressure region and high pressure region, that is in the moderate pressure region, you will find that the gas is going to have x by m is proportional to p ki power 1 by n. The n value would be greater than 1 but less than infinity. So this is what we conclude in the last lecture. And then we say that if we write x by m equal to k into p ki power 1 by n, taking log of it, log of x by m equal to log k plus 1 by n of log p. And if you make a plot between log x by m and log p, it will come out to be a straight line with the slope equal to slope equal to tan theta, and theta in this case will be equal to 45 degree. Correct? This is in the low pressure region. Are you okay with this point? Yes, sir. So this is what we have discussed at length, and then we went on to the discussion about the catalyst. And catalyst, I have told you that there are catalysts which are called as positive and the negative catalyst. Positive catalyst accelerates a reaction, negative catalyst retards a reaction. Positive catalyst को भी activate करने के लिए we require a compound which is called promoter, और catalyst की activity को कम करने के लिए we required compounds which are called poisons. So poisons are different than the negative catalyst, and the catalyst, well, poison is basically used for the catalyst, or poisons and promoters are used for a catalyst, and they are used for basically the positive catalyst. तो पॉजिटिव कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रोमोटर यूज करते हैं, उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए हम पॉइजन्स यूज करते हैं. नेगेटिव कैटलिस्ट जो है वो कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को चेंज करने के लिए जो चाहिए वो प्रोमोटर या पॉइजन है. लेकिन कैटलिस्ट की एक्टिविटी अपने आप में या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि वो रेट को बढ़ा रहा है या घटा रहा है. रेट बढ़ रही है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, रेट घट रहा है इसका मतलब वो नेगेटिव कैटलिस्ट है. रेट बढ़ने का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम होना, रेट decrease करने का मतलब activation energy is increasing, right? That is the aspect that can be seen from the RNS equation, right? So this is the mathematical part of the topic. अब जो part है वो almost सारा theoretical है इसके बाद वाला, right? तो जो भी इसका mathematical part था जिसमें physical chemistry के कुछ हम equations लगा सकते हैं या laws लग सकता है, वो हमने इस वाले part में सीख लिया है, adsorption में, और कुछ part हमने catalysis में देख लिया. बाकी का जो आगे वाला पार्ट है उसमें आपका बहुत ही थियोरेटिकल पार्ट है, बट ऑब्वियसली आई होप यू आर एबल टू गेट द फील ऑफ द टॉपिक. आ रही बात समझ में? यस सर. टॉपिक का टॉपिक जी सर. क्या चीज है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दिस इज द एस्पेक्ट दैट यू शुड नो, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल सी दैट व्हेन यू डू प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रीवियस ईयर यू विल फाइंड यू विल बी एबल टू डू ऑल द प्रॉब्लम्स करेक्टली.
right? Provided you have understood the basic concept very clearly. अब अगर हम इसमें आगे की बात करते हैं तो हमने कैटलिस्ट का और डिस्कशन किया था, होमोजीनियस कैटलिसिस, हेटेरोजीनियस कैटलिसिस, एंड देन उसकी और वैरायटी ऑफ कैटलिस्ट में ऑटो कैटालिसिस देखा था, फिर एक इंड्यूस कैटालिसिस देखा था. तो लास्टली वी वर टॉकिंग अबाउट इंड्यूस कैटालिसिस. इंड्यूस कैटालिसिस ये कि कुछ रिएक्शंस अपने आप में बहुत स्लो होती हैं, लेकिन किसी की प्रेजेंस में कराएं तो वो कैटलिस्ट की तरह दे गेट कैटलाइज्ड एंड द रेट गेट्स इंक्रीज्ड, and that is the induced kind of an effect which is happening on the by one reaction on the other, right? So we took two examples in that, and I hope that part is absolutely clear to you. सर एक चीज मुझे कुछ समझनी थी, जैसे कैटलिस्ट प्लैटिनम या निकल हम यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, तो उसमें सर वो रिएक्शन होती कैसे है? मतलब वो हाइड्रोजन बिना रिएक्ट किए भी कम कैसे हो जा रहा है प्लैटिनम से? मुझे थोड़ा वो समझ नहीं आता है. ठीक है, आज की क्लास के बाद ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आया. अच्छा सर. और सर इंड्यूस्ड कैटलिस्ट में आपने बताया था कि जैसे एक रिएक्शन की जैसे दूसरी रिएक्शन इन्फ्लुएंस हो जाती है, तो जैसे अगर A प्लस बी हम कर रहे हैं तो वो B प्लस डी वाली के साथ C प्लस डी वाली के साथ अपने आप रिएक्ट भी कर रहा है. बस ऐसे हम समझना चाह रहे हैं, जैसे अगर हमने दो रिएक्टेंट्स को लिया है तो वो दूसरे दो रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा. एक मिनट. हाँ बता सर. इंड्यूस्ड कैटालिसिस में जैसे एक रिएक्शन की वजह से दूसरी रिएक्शन इन्फ्लुएंस होके रिएक्ट फास्ट कर रही है, तो अगर हमने A प्लस बी लिया और B प्लस डी लिया है तो C प्लस डी लिया है, तो A प्लस बी क्या सर C प्लस डी के साथ रिएक्ट करके उसको फास्ट कर रहा है? नो रिएक्ट नहीं कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है. इट इज जस्ट द इंड्यूस्ड इफेक्ट विच इज हैपनिंग कि उसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स में कुछ एक्टिविटी बढ़ गई. अच्छा. रिएक्शन तो उन्हीं के बीच में हो रही है जिनके बीच में होनी, क्योंकि उसकी वजह से उनके बीच में रिएक्शन होगी तभी तो उसका प्रोडक्ट बनेगा. यस सर. अब मैं मतलब A और B का और C और D का इनका आपस में रिएक्शन कराऊंगा तो प्रोडक्ट कुछ और बनेंगे फिर तो you'll have a different set of products that will be formed, but set of products will remain same. It's only that the rate at which the reaction is occurring is faster. So what must be happening is the presence of दूसरे molecule की वजह से energy of these molecules must be altered. If the energies are altered, that means they are undergoing reaction at a faster rate now. Yes. Energy enhance हुई होंगी कुछ. जी सर. तो उसकी वजह से रेट में चेंज आएगा. Yes, right? sir. अब there are two theories of catalyst that we need to do. कौन कौन सी है? एक तो है intermediate compound formation theory, और जो दूसरी है that is the theory called उसका क्या नाम है, चलो अभी आएगा आगे. ठीक है, तो intermediate compound formation theory जो है it is given for the you can say ये homogeneous catalysis के लिए दी जाती है. और दूसरी जो थ्योरी है आई थिंक दैट्स एडजॉर्प्शन थ्योरी, दैट इज गिवन फॉर द हेटेरोजेनियस कैटालिसिस. राइट. तो ये जो दो थ्योरीज है वो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस को एक्सप्लेन कर रही है, अलग अलग फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रही है. और एज द नेम इंडिकेट्स इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, तो इसका मतलब कि देयर इज सम कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, एंड दैट इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बना होगा उसमें कैटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा. अगर आपको याद है तो मैंने कल के लेक्चर में ये चीज बताई थी कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट का एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस क्या है कि होमोजीनियस कैटलिस्ट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, रेट लॉ में आएगा, और रेट लॉ में आ रहा है इसका मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. और वो कैटलिस्ट एक रिएक्टेंट से कंबाइन करके इट मस्ट बी फॉर्मिंग सम इंटरमीडिएट कंपाउंड. सो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी वुड बी एप्लीकेबल फॉर homogeneous catalysis. Are you able to relate? Yes sir. Let's see how it does. So what are the points that we need to look? According to this theory, the catalyst first comes into forms an intermediate compound with one of the reactant. किसी एक reactant के साथ combine करके एक intermediate compound देगा, और ये intermediate compound फिर decompose करके products देगा. And this intermediate compound is formed which is going to have less energy consumption than that needed for the actual reaction. And इसकी वजह से rate of reaction कुछ fast हुई होगी, और intermediate compound being unstable, it will going to combine with the reactant, with the other reactant to form the desired product, and the catalyst is regenerated. Let's say for example, आपके पास एक reaction है इसमें A और B combine करके कोई product दे रहे हैं AB. तो consider reaction of the type AB
which is combining to give you the product. And this is combining to give you the product AB. And this occurs in the presence of a catalyst, which is, let's say, C. And this reaction will take place in the following steps. The first step that I'm saying is कि इनके बीच में reaction क्या हुआ कि A और C पहले combine करके. That means A और B में से एक reactant है A. The catalyst C is combining with one of the reactant of it to produce a compound AC, and this is a reaction which is going to be slow reaction. It's the rate constant of the reaction is K. इसका rate constant K मान लेते हैं. और फिर अगले स्टेप में इसका मतलब C तो catalyst है और AC इसमें intermediate compound है, correct? Now AC is going to combine with another reactant with the reaction which is B. So AC is combining with B and will result in the formation of AB plus C is regenerated back. So can you see C यहाँ भी था, C at the end of reaction भी है, concentration में उसका कोई change नहीं हुआ, इसलिए therefore it is acting as a catalyst. It remain unchanged during and after the reaction. So before and after the reaction उसकी concentration में कोई change नहीं है. So this is only acting as a catalyst. Are you clear with this? Yes sir. तो ये जो स्टेप है इसका रेट कांस्टेंट कुछ मैं K प्राइम मान लेता हूं. अब इस रिएक्शन का जो रेट लॉ है अगर मैं वो लिखूंगा तो क्या आएगा? रेट शुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इनटू द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. सो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज K. सो आई वुड से रेट विल बी इक्वल टू यहां पे सर यही रेट वो स्लो स्टेप AB is the product and C is the catalyst. This is the slow step. Since slow step है तो वो rate determining step होगा, तो उसी हिसाब से रेट लॉ लिखा जाएगा. रेट लॉ क्या होता है? Rate constant of that step multiplied by the concentration of the respective species raised to the power of coefficients they have. Because we assume this is ये एक single step जो है elementary step है और elementary step में जो molecularity होती है वही उसकी order होती है. जब मैं रेट लॉ लिख रहा हूँ तो A की पावर 1 और C की पावर 1 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट एक एक है. Are you getting my point? Yes sir. Rate is equal to K into A into C. Can you see the catalyst is also involved in the rate law? Yes sir. So this is how it is occurring. And if catalyst की concentration इस reaction में देखेंगे तो catalyst की concentration तो change ही नहीं कर रही. Catalyst will remain same. Yes sir. So concentration of catalyst is not changing. Concentration of A definitely would be decreasing because this is getting consumed. तो A का concentration कम होता जा रहा है. C का concentration constant है. तो C constant है और K constant है तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी एक नया constant कह सकते हैं which is K prime. So finally rate law can be written as rate equal to K prime into A, where K prime is not the true rate constant of the reaction, that is called pseudo rate constant of the reaction. Are you clear this with this point? Yes sir. ये बात आ रही समझ में यहाँ तक? Yes sir. ठीक है. So this is how the homogeneous catalysis will function, and let's see एक कोई example देखते हैं. For example, we consider the catalytic oxidation of SO2 to SO3 in the lead chamber process. तो मैंने बताया था सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के दो प्रोसेस थे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और लेड चैम्बर प्रोसेस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज करते हैं बेसिकली वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5. बट इन द केस ऑफ this lead chamber process we use the catalyst as nitrous oxide NO gas. So NO gas का इसके साथ जब रिएक्शन हो रहा होगा, ये होमोजेनियस कैटलिसिस है. अगर आप याद रखोगे SO2 plus O2 will combine to give SO3. ये ओवरऑल रिएक्शन है. ठीक है. SO2 plus O2 giving SO3 in the presence of NO. Now NO is in the gaseous state, SO2 and O2 are also in the gaseous state, so it's a homogeneous catalysis for example, for sure. And now in this particular example what I am saying is कि एक reactant दोनों में से SO2 और O2 में से एक reactant कौन है? O2. उस O2 के साथ पहले catalyst combine किया NO. NO is the catalyst combines with one of the reactant O2 to give the product as NO2 gas. Are you okay with this point? Yes sir. NO is therefore the intermediate compound here. NO2 is the intermediate compound here. So that NO2 is going to combine with the second reactant of the reaction, which is sulfur dioxide. So sulfur dioxide and NO2 will react in the next step to produce NO2 will get reduced to NO, SO2 will get oxidized to SO3. At the end of the two reactions, you can see दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो NO2 घट गया और NO भी घट गया. And what I got is twice of O2 plus O2, twice of SO2 plus O2 gas will give you twice of SO3 gas. That is the overall reaction. That is the reaction occurring in the lead chamber process in the presence of the nitric oxide as the catalyst. Are you okay with this point? Yes sir. So that's a actual example we have taken, right?
तो ये आपका केस है. दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द कैटलिस्ट दैट दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट रिएक्शन के एंड में कैटलिस्ट वापस से रीजनरेट हो गया तो कैटलिस्ट का मास क्या रहेगा? विल रिमेन अनचेंज. यस एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कैटलिस्ट विल आल्सो रिमेन अनचेंज बिकॉज जितना पहले था उतना ही बाद में. तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट ही काफी सारे रिएक्शन को या काफी सारे रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट्स में. सो वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट विल बी नीडेड. इट विल बी इफेक्टिव in carrying out the transformation of reactants to products. Are you okay with this point? यस सर. जो रेट लॉ में आपने बताया था कि A+C हम करेंगे और फिर AC बनेगा, AC को रिएक्ट करेंगे B से फिर AB बन जाएगा. तो सर अगर रेट लॉ अगर हमने लिखना हो तो जैसे हमने स्लो स्टेप से लिख दिया लेकिन जो B का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा वहां पे, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें A+B तो रिएक्ट कर रहा है तो हमने स्टेप्स तोड़ दिए ना. A+B गिविंग C, तो उसमें बेसिकली क्या है, वो जो स्टेप है ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन की रेट विल बी नॉट गवर्न बाय दैट स्टेप विच इज फास्ट. हाँ सर. तो फास्ट स्टेप से वो गवर्न नहीं होती, वो गवर्न होती है स्लो स्टेप से. तो स्लो स्टेप जो है उसकी रेट चेंज करने से रेट में चेंज आ रहा है ओवरऑल. मतलब ऐसा नहीं कि वो रिएक्शन नहीं कर रहा, वो तो कर रहा है लेकिन उसका उसका यूटिलाइजेशन नहीं है ज्यादा. मतलब उसका बेसिकली इम्पैक्ट नहीं है ओवरऑल रिएक्शन पे. समझ ले एक बात को, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन इज इन एजुकेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल माय क्लासरूम में एजुकेशन दी जाती है फॉर कॉम्पिटिटिव एजुकेशन विच इज बेसिकली जेई एंड नीट. करेक्ट. अब इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते होंगे. अब इस ऑर्गेनाइजेशन में एक काम होता है कि टीचर्स कम एंड टेक क्लासेस, राइट. Apart from that, there will be some account section also. There will be some, you can say, marketing वाले लोग भी होंगे. There will be some, tech वाले लोग भी होंगे. मैनेजमेंट के सब कुछ होगा, मैनेजमेंट होगा, टेक होगा, जूनियर स्टाफ होगा, SMEs होंगे. उसके अलावा there will be staff which is capable of जो आपका बहुत ही वैसा अनस्किल्ड स्टाफ होगा, वो भी होगा. So we'll have variety of people here, but which is the सबसे जो की काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो कौन कर रहा है? टीचर. So that teacher is the most prominent thing in the organization. Yes. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर ऐसा पोर्ट्रे करना है कि दिस इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो टू ऑन whom they should concentrate? Should they concentrate on the people of accounts? यार इनको खुश रखते हैं, ये सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं. उससे ऑर्गेनाइजेशन में दम नहीं आएगा. दम तब आएगा क्योंकि ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन होगी जिसकी वजह से हमारा ज्यादा नाम होगा, वो कौन है? वो टीचर्स हैं. सो टीचर्स शुड बी गिवन द ग्रेटर प्रायोरिटी बिकॉज वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ऐसा नहीं कि उनका हम ध्यान रख रहे हैं तो बाकियों का काम इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब है, बट सबसे सिग्निफिकेंट जो रोल है वो किसका है? इन टीचर्स का है. तो एज इट इज जब भी आप कोई जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हो, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहा हूं मैं, मान लीजिए बाइक मैन्युफैक्चरिंग, राइट. इस बाइक मैन्युफैक्चरिंग में एक यूनिट के अंदर क्या है? हैंडल्स बनते हैं. एक यूनिट के अंदर मेरे टायर्स बनते हैं. एक यूनिट के अंदर मेरी बॉडी बनती है और एक यूनिट के अंदर मेरा उसका इंजन बनता है. अब अगर आप सोचो कि सबकी कैपेसिटी एक दिन में बनने की अलग अलग है. एक जो मेरा हैंडल वाला यूनिट है वो हैंडल बनाता है 200 हैंडल पर डे. जो मेरी बॉडी बनाने वाली यूनिट है वो बनाती है 100 यूनिट पर डे. और जो टायर बनाने वाली यूनिट है, दे मेक अ पेयर ऑफ लेट्स से 75 यूनिट्स पर डे. और जो इंजन बनाने वाले हैं वो बनाते हैं 25 यूनिट पर डे. तो एट द एंड ऑफ द डे जब मैं उनको सबका असेंबल करूंगा, कितनी बाइक्स बनेंगी? 25. सिर्फ 25 बनेंगी, भले ही उनका प्रोडक्शन कुछ भी रहा हो. अब जरा सोच के देखो कि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर डे पे जिस यूनिट में इंजन बन रहे हैं उसका सुपरवाइजर एक दिन नहीं आए, और उसका सुपरवाइजर नहीं आया, तो वहां जो वर्कर्स है वो क्या करेंगे? Those workers will be able to take more breaks. Those breaks will become little longer also. So ज्यादा ब्रेक लिए, ज्यादा लंबे लंबे ब्रेक हो गए, और धीरे धीरे उन्होंने काम किया बिकॉज उतना कोई प्रेशर नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है. तो अंडर दैट कंडीशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट कि these people on that particular day will start to manufacture less engine. तो उन्होंने 20 ही इंजन बनाए और बाकी सबने उतने ही बनाए जितने बनाते हैं.
और सबको असेंबल किया तो यार बीसी बाइक भी नहीं। तो अगले दिन सुपरवाइजर या मैनेजर आया, उसने देखा ये तो गड़बड़ हो गई। तो उसने क्या किया, अगले दिन आके डांट लगाई लोगों की। लेकिन उसने डांट किसकी लगाई? उनकी लगाई जो हैंडल बनाते थे। अब हैंडल बनाने वालों की जब डांट लगी, अगले दिन उन्होंने और ज्यादा काम कर लिया। और उन्होंने ज्यादा काम किया कितना, उन्होंने 200 की जगह 220 बना दिए। और लेकिन इन्होंने अब क्योंकि सुपरवाइजर आ गया था, उन्होंने 25 ही बनाए। ठीक है, अब उन्होंने 25 बनाए, जब असेंबल हुई तो फिर से 25 ही बने। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैनेजर क्या सोच रहा है कि यार मेरा एकदम डांट लगाने से फायदा हुआ, जबकि एक्चुअल में फायदा नहीं हुआ है। वह नहीं वो तो नॉर्मल जितना करते थे उतना ही किया उन्होंने। एंड देन फिर यही इंसिडेंट फिर एक बार वापस हुआ, और फिर से 25 से 20 आ गया प्रोडक्शन। अगली बार जब वो आया तो उसने उनको डांट लगाई, और डांट लगाई तो उस दिन उन्होंने 25 की जगह 28 बना दी। तो अब उसको रियलाइज हुआ यार एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग मेरी जो है अफेक्ट किसकी वजह से हो रही है? इन लोगों की वजह से हो रही है, जो ये सबसे स्लो काम कर रहे हैं, सबसे धीरे जो चीज चल रही है, उसी चीज को अगर मैं तेज करूं तो मेरा ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। So overall production will be affected by that step, which is going to be the slowest of all. So जो सबसे की चीज है उस स्टेप की, उस पूरे ओवरऑल प्रोसेस की, वो स्टेप होता है जहां पे सबसे ज्यादा बॉटलनेक होता है। तो आप उस बॉटलनेक को अगर हटा दो तो उसमें उसकी वजह से आप देखोगे कि मतलब जो प्रोसेस है दैट कैन बी स्पीडेड अप। यू नो देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। और सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट में मेन जो थीम होती है वो यही होती है कि दे आइडेंटिफाई दैट कि इस पूरी कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, इंडस्ट्रियल हाउस में जो भी मेरे स्टेप्स हैं, ऐसा कौन सा स्टेप है जो सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है। या कहो कि यार हमारा इतना रॉ मटेरियल आता है और उससे हम इतना ही बना पाते हैं, तो ये वेस्टेज क्यों इतना ज्यादा हो रहा है? तो इफ somebody works on that and they try to figure out कि यार ये जो वेस्टेज हो रहा है इसको अगर मैं रिपेयर अप कर दूं, इसको रिपेयर कर दूं, तो उसकी वजह से आपका सडनली देखोगे प्रोडक्शन में इंक्रीज बाय 10%। तो ये बहुत की होता है कि आप उस राइट एरिया को आइडेंटिफाई कर पाओ। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो राइट एरिया हमारा रिएक्शन का है वो क्या है? स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप को और तेज कर दोगे, ओवरऑल रिएक्शन तेज हो जाएगी। लेकिन जो स्टेप पहले से ही तेज है वो और तेज हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये बात है, हम यहाँ कह रहे थे कि ये जो कैटालिसिस की थ्योरी है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर होमोजेनियस, राइट। बट ये प्रोमोटर्स का और जो कैटलिस्ट जो हमारे पॉइजन्स हैं उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सो इट आल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ द catalytic promoters, catalytic poisons, and the action of finely divided catalyst, right? Second theory is an adsorption theory. Now, adsorption theory, as I've told you, it is applicable for the second type of catalysis, which is called heterogeneous catalysis. तो heterogeneous catalysis के लिए applicable है। और इस थ्योरी में एड्सॉर्प्शन का कुछ इस्तेमाल हुआ होगा। और एड्सॉर्प्शन कैसे हो रहा है वो जरा समझ लेते हैं कि when the catalyst is basically in the solid state and the reactants are in the gaseous state, तो heterogeneous है तो कैटलिस्ट का फेज और रिएक्टेंट का फेज डिफरेंट होगा पक्का। यस। तो कैटलिस्ट मेरा सॉलिड है और रिएक्टेंट्स या तो गैस है या सॉल्यूशन फेज में। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ जो भी रिएक्टेंट होंगे ना, दे विल कम एंड एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट और द कैटलिस्ट विल फंक्शन एज एड्सॉर्बेंट हियर। तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस लग रहा है। अब वो प्रोसेस को समझने के लिए हम थोड़ा एक पर्टिकुलर रिएक्शन लेंगे, जो रिएक्शन तू समझना चाह रहा था कि एल्कीन और एल्काइन का जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो दैट पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू टुडे। तो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द सरफेस इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। सो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि कैटलिस्ट का सरफेस है विच इज एड्सॉर्बेंट, तो उस पर आगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होते हैं और एड्सॉर्ब होते रहते हैं, तो उस पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहती है, फिर उनके बीच में आपस में कोलिजन्स होते हैं, रिएक्शन हो जाती है, प्रोडक्ट बन जाते हैं, दे एस्केप फ्रॉम द रिएक्शन साइड। तो उसके बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं।
ये क्या है? सर नए पेज में ही पेस्ट कर देते हैं उसे। वाइट क्यों आ रहा है? चलिए उसमें आ नहीं रहा, तो ये पार्ट हम पढ़ लेते हैं यहीं से। यस सर। एड्जॉर्प्शन जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हमें पता है, राइट। तो एड्जॉर्प्शन क्योंकि एड्जोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जब आपका एड्जॉर्बेंट आके एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब हो रहा है, तो उससे बेसिकली कुछ हीट रिलीज हो रही है, एंड दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन और एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है, इट इज टेकन अप बाय द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट व्हिच इज यूटिलाइजिंग एनहांसिंग द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। सो बेसिकली क्या होगा कि जो एनर्जी रिलीज हुई वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कहीं डिस्ट्रीब्यूट होगी, एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी अफेक्ट होगी, एंड दे विल बी अंडरगोइंग कोलिजन एट अ फास्टर रेट, एंड rate of reaction will be enhanced because of that also. So there is some contribution by that part also. यस सर। चलिए, so this view does not explain the specificity of a catalyst. एक catalyst की specificity को ये adsorption theory नहीं बताता, but इसके mechanism के 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप में से सिंपल से स्टेप क्या है, जब भी एक रिएक्शन होगा तो कुछ रिएक्टेंट्स होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, राइट, और बीच में कैटलिस्ट होगा। तो हम कह रहे हैं कि कैटलिस्ट का एक सरफेस है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स अभी दूर है, तो रिएक्टेंट्स पहले स्टेप में क्या डिफ्यूज होके कहाँ आएंगे, कैटलिस्ट के पास आएंगे। दिस इज फर्स्ट स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट फ्रॉम द फार ऑफ साइड टू द कैटलिस्ट साइड, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज द कैटलिस्ट के पास आके रिएक्टेंट जाके एड्सॉर्ब हो जाएंगे, दिस इज सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज कि रिएक्टेंट्स आपस में उन सरफेस पे कंबाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट, दैट इज द एक्चुअल रिएक्शन जहां हो रही है वो थर्ड स्टेप में हो रही है। फोर्थ स्टेप में अब प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, तो कैटलिस्ट सरफेस पे कौन है, प्रोडक्ट्स। तो कैटलिस्ट सरफेस पे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट उतने स्ट्रांगली एब्जॉर्ब नहीं, तो दे विल लीव द कैटलिस्ट सरफेस, दे विल गेट डिसॉर्ब, डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स विल टेक प्लेस, एंड देन द कैटलिस्ट यही रहा सरफेस, और प्रोडक्ट्स यहां से डिफ्यूज होकर दूर चले गए। So that is, these are the 5 steps. पहला step is diffusion of the reactants to the catalyst side. Last step is the diffusion of the products away from the catalyst side. तो ये 2 स्टेप अगर हटा दें तो बीच के 3 स्टेप क्या बचे, कि पहला स्टेप जिसमें आपका एड्सॉर्प्शन हुआ, दूसरा स्टेप जिसमें केमिकल रिएक्शन हुई, और थर्ड स्टेप जिसमें डिसॉर्प्शन हो रहा है। तो एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन इज दी अदर 2 स्टेप्स, और इनको हटा दो तो बीच में जो स्टेप बचा दैट इज द स्टेप जिसमें केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में हो रही है। आई बात समझ? यस सर। अब स्टेप पढ़ लेते हैं एक बार। Diffusion of the reactants to the surface of the catalyst, right? They will come and attach to, they will come and close to the surface of the catalyst, and some form of association between the catalyst surface and the reactants occur, and that is basically kind of adsorption hoga. And the occurrence of chemical reaction on the catalyst surface is the third step. Fourth step is the desorption of the reaction products away from the catalyst surface. मतलब कैटलिस्ट सरफेस को छोड़ के थोड़े दूर चले जाएंगे और फिर वहां से डिफ्यूज होके they'll go far off away from the catalyst surface. So reactants or the diffusion of the reaction products away from the catalyst surface. These are 5 steps. Clear? सिंपल से वही है जो मैंने बोला था, वही स्टेप्स यहाँ पे आए हैं, राइट। अब हम इन स्टेप्स को एक रिएक्शन में देखते हैं। तो मैं पहले 2 स्टेप को हटा देता हूँ। डिफ्यूजन तो मैं दिखा नहीं सकता कि आ रहा है जा रहा है टाइप्स, ठीक है, तो उसको हटा दिया मैंने। बाकी के 3 स्टेप बीच वाले में दिखा रहा हूँ। तो स्टेप नंबर 2 पहला होगा, ये एनसीईआरटी की उससे लिया हुआ है। तो ये बेसिकली कैटलिस्ट का एक सरफेस है। उस कैटलिस्ट के सरफेस पे बेसिकली ये आपकी कुछ एक्टिव साइट्स हैं, उनके पास कुछ ये फ्री वैलेंसीज है। अब इस कैटलिस्ट के सरफेस पे आपका रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल डिफ्यूज होके आ चुका है, तो यहाँ पे है वो ऐसे है। अब उनके बीच में आपस में क्या हो रही है, पहले एड्सॉर्प्शन हो रहा है,
तो ये रिएक्टेंट जो है उस कैटलिस्ट सरफेस पे एड्सॉर्ब हुए तो एक यहां चला गया, एक यहां चला गया और नियर बाय वैलेंसीज पे लग गए। करेक्ट। अब नियर बाय वैलेंसी पे लगने के बाद इनके बीच में रिएक्शन हुई और देयर इज सम बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ए एंड बी टेक प्लेस। जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा तो ये वाले बॉन्ड टूट रहे होंगे। तो एक्चुअल में जो स्टेट है वो ये ऐसे होनी चाहिए, इसमें मतलब विल नीड टू डू सम करेक्शन ये है कि ये बॉन्ड बनने की स्टेज में है एंड दीज टू बॉन्ड्स विल बी इन द ब्रेकिंग स्टेज। ऐसा होगा कुछ। फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड पूरा बन गया और ये बॉन्ड पूरे टूट गए। अगर ये बॉन्ड बन गया तो ए बी अलग हो गया और ये रिएक्टेंट सरफेस कैटलिस्ट सरफेस फिर से फ्री हो गया। दिस कैटलिस्ट सरफेस अगेन रेडी टू रिएक्ट विद अनदर सेट ऑफ रिएक्टेंट्स। सो सेम सेट ऑफ कैटलिस्ट जो है वो फिर अलग न्यू सेट ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ कंबाइन करके दिस कीप ऑन फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। तो अब इस सिचुएशन में हमने 3 स्टेप दिखा है। पहला डिफ्यूजन और लास्ट डिफ्यूजन हटा दिया, उसके बाद एड्सॉर्प्शन बनाया पहला स्टेप, एड्सॉर्प्शन के बाद एक्चुअल रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद उसका डिसॉर्प्शन हुआ और प्रोडक्ट्स बन गए और कैटलिस्ट अलग हो गए। राइट। अब ये एक तो हमने जनरल रिएक्शन लिया। अब मैं इसको एक लाइव एग्जांपल से दिखाता हूं। लाइव एग्जांपल आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन है। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एक हेटेरोजेनियस कैटालिसिस रिएक्शन है, क्योंकि एल्कीन और हाइड्रोजन का जो वो है क्या कहते हैं, एल्कीन और हाइड्रोजन का जो फेज है वो गैस है और जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज में, निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम जो भी होगा कैटलिस्ट आपका सॉलिड फेज में। तो ये हमारा कैटलिस्ट का सरफेस है, दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। उस कैटलिस्ट के सरफेस पे ये रेड वाली जो लिखे हुए पॉइंट्स वो एक्टिव साइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस पे आपका हाइड्रोजन और जो ये इथाइलिन है बेसिकली सीसी बॉन्ड है और एक कार्बन पे 2 H इधर है 2 H इधर है। दिस इज इथाइलिन का मॉडल है और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। आर यू ओके विद दिस? यस सर। So the hydrogen and the ethylene molecule will come and attach on the catalyst surface. They will form some bond. अभी बॉन्ड कैसा बनेगा? तो ये जो बॉन्ड बनेगा कि H2 का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे आके एड्सॉर्ब हुआ और उसके HH के बीच में दो एडजेसेंट साइड है यहाँ पे, मतलब ये बेसिकली H2 का मॉलिक्यूल यहाँ समझ लो ऊपर। अगर ये सरफेस है तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इनके बीच का बॉन्ड टूटने लगेगा और इन दोनों कार्बन और इस दोनों निकल का एटम और उस हाइड्रोजन के बीच में कुछ बॉन्ड जो होगा वो टूटने लगेगा। सो बॉन्ड बिटवीन H and H will be in the process of breaking and bond between H and the nickel atom will be in the process of making. And that bond जो बन रहा है वो इनिशियली जो बॉन्ड बनता है वो फिजिक्स ऑप्शन है। तो फिजिक्स ऑप्शन की वजह से बॉन्ड बना तो उसमें एनर्जी रिलीज होने लगी, उसकी वजह से बॉन्ड HH को तोड़ने में मदद मिलेगी and HH bond will start to break. Are you getting my point? Yes sir. You can see ये HH एटम है और ये 2 H एटम जो है वो निकल के सरफेस के साथ जुड़ते जा रहे हैं और ये जो कैटलिस्ट है ये जो बेसिकली इथाइलिन है, इथाइलिन जो है अपने पाई बॉन्ड के थ्रू उसकी एक्टिव साइट्स निकल के साथ एक इंटरेक्शन बनेगा। तो देखो जब भी इंटरेक्शन होना होगा तो दो ही चीजें हैं कि देयर इज सम बॉन्डिंग व्हिच इज नीडेड बिटवीन द कैटलिस्ट सरफेस एंड द रिएक्टेंट वियर। उसमें या तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या उसके पास पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर उसके पास अनपेयर्ड, जैसे H2 का मॉलिक्यूल मैं तोड़ दूं, अब H2 का मॉलिक्यूल अगर मैं तोड़ दूंगा तो व्हाट विल यू गेट इज बेसिकली कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 H एटम्स। तो 2 H एटम के पास दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ निकल के साथ यहां बॉन्ड बनाएगा जो केमिकल बॉन्ड बन जाएगा और इसका H का इस निकल के साथ बॉन्ड बन जाएगा। सो H एंड निकल, द 2 हाइड्रोजन एटम्स विद द निकल आर फॉर्मिंग काइंड ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। So initial adsorption might be physical, which will later transform into a chemical adsorption. Yes sir. Have you followed this point? Yes sir. Ethylene gets adsorbed on the surface of nickel due to its pi bond. Pi bond will be labile and they have easily, flexible and उसमें electrons जो है available है और उन unpaired electrons की वजह से this can result in the formation of a bond with a nickel surface. तो ये adsorption process हुआ पहले, गैस यहां से आके एड्सॉर्ब हुई, तो ये पहला स्टेप है। सो दिस इज स्टेप नंबर 1 व्हिच इज एड्सॉर्प्शन, राइट। अब आफ्टर द एड्सॉर्प्शन सेकंड स्टेप विल बी द एक्चुअल रिएक्शन बिटवीन देम। रिएक्शन क्या हो रही है कि पहले H जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस पॉइंट को जरा मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख के दिखाता हूं आपको, ये कैसे होता है। तो ये मेरा एल्कीन का वो है मॉलिक्यूल और कैटलिस्ट के सरफेस पे यहाँ पे H एटम निकल के साथ जुड़ा हुआ है ऐसे।
करेक्ट, ये भी निकल के सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक और निकल है। अब क्या हुआ, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनना शुरू हुआ। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और ये 2 इलेक्ट्रॉन है इस पाई बॉन्ड में, तो एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने में यूज हुआ, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल राइट, तो निकल का सरफेस ये फ्री हो गया, यहाँ पे एक निकल था और यहाँ एक निकल था। अब हमने कहा इस कार्बन का एक बॉन्ड बन गया H के साथ, ये तो फुल बॉन्ड बन गया ना, क्योंकि बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन H रेडिकल लिया, एक पाई बॉन्ड से आ गया, सो विल हैव अ फुल बॉन्ड। एंड देन इस समय इस कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस निकल के साथ सरफेस पे बॉन्ड बना रहा होगा, और यहाँ पे जो H एटम है वो अभी निकल के साथ जुड़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर से और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर से आया और इसके बीच में नया बॉन्ड बन गया। अब जो नया बॉन्ड बनेगा उसमें कार्बन के पास एक H यहाँ लग गया, एक H यहाँ लग गया, और 3 निकल के एटम जो थे वो सारे के सारे अब फ्री हो गए, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल बना है एल्केन का, उस एल्केन के मॉलिक्यूल के पास ना तो पाई बॉन्ड है ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कैन इट गेट एब्जॉर्ब ऑन द निकल सरफेस? इट कांट। तो उसका कैटलिस्ट सरफेस के साथ एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, इसलिए वो वहां से एक तरीके से डिसॉल्व हो गया, और डिसॉल्व होके जाएगा तो ऑब्वियसली दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बन गए, इथेन बन गया, और आपका फिर वहां से डिसॉर्प्शन होकर डिफ्यूजन हो जाएगा। तो आप देखोगे पहले इसके साथ बॉन्ड बना, तो इस कार्बन पे, सॉरी ये नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे, नॉट दिस। नेक्स्ट स्टेप इज दिस, तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एक H एटम फ्री रह गया, तो इस कार्बन पे 3 H देखो, 1 2 3 दिख रहे हैं? यस सर। दिस 1 दिस 2 दिस 3, और इस पे 2 H ही लगे अभी, यानी कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो अपने सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है, या H जुड़ा हुआ है, अब इनके बीच में बॉन्ड बना और इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ईथेन, एंड देन दिस विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम द सरफेस बिकॉज़ देयर इज नो ability of that ethane molecule to form bond with the catalyst surface, because neither it has a pi bond nor it has a unpaired electron. So since that is not there, therefore this will get dissolved from the catalyst surface and will therefore diffuse away from the catalyst surface. Are you clear with the process now? Yes sir. तो ये स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप इज दिस, सेकंड स्टेप इज दिस, एंड थर्ड स्टेप इज दिस। करेक्ट? यस सर। चले, इसके बाद हम आते हैं एंजाइम कैटालिसिस में। एंजाइम कैटालिसिस में क्या होता है कि वी हैव टू लुक एट इट कि एंजाइम्स कैटालिसिस का मतलब है कि ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस यू नो ऑर्गेनिजम्स में या ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रही हैं जो अपने आप नहीं होती, उनको कराने के लिए कुछ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, और वो जो कैटलिस्ट है बेसिकली वो एंजाइम्स है। तो इसलिए उन रिएक्शंस को हम एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं। तो देयर आर मेनी रिएक्शंस, जैसे आपके स्टमक में आपने यू हैव ईटन सम फूड, ठीक है, उस फूड में बेसिकली वो था स्टार्च था, तो स्टार्च जो है वो एज इट इज हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती, तो स्टार्च हैज टू बी ब्रोकन डाउन। तो स्टार्च को पहले हमने ब्रेक किया बेसिकली माल्टोज में, तो स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करने के लिए हमारी बॉडी में एक एंजाइम चाहिए डायस्टेज, तो डायस्टेज एंजाइम जो हमारी बॉडी में होगा वो पहले उसको ब्रेक डाउन करेगा। स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज एंड देन माल्टोज इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज की यूनिट जो है वो फिर कंबशन करेगी और उसके बाद उससे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज यूज्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह का प्रोसेस है हमारी बॉडी में। तो यानी कि उन बड़े कंपाउंड्स को, बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए वी रिक्वायर सर्टेन एंजाइम्स, एंड दोस रिएक्शंस आर कॉल्ड एज enzymatic catalyst, and the process is called enzyme catalysis. Are you clear with this? तो इन्हीं, क्योंकि ये एक बेसिकली बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज हो रहे हैं और कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो इसको बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं एंजाइम्स को, और फिनोमेना को बायोकेमिकल कैटालिसिस भी कहा जाता है। ये बॉडी में पहले से मतलब मौजूद होते हैं नेचुरली? बिल्कुल, they are present, they are being synthesized in the body itself. So जो हम खा रहे हैं उन्हीं से कुछ कुछ एलिमेंट्स आपके उन एंजाइम्स को सिंथेसाइज करने के लिए, स्पेशली कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऐसे पेनक्रियाज है उसमें कुछ बनते हैं एंजाइम्स, कुछ स्प्लीन है वहां बनते हैं, तो इस तरह के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ये इनका सिंथेसिस होता है। यस सर। मतलब इतना, बाकी तो मुझे बायो नहीं पता। They are very effective catalysts, and they catalyze numerous reactions, especially those which are connected with the natural processes. Numerous reactions that occur in the bodies of the animals and plants to maintain the life processes are catalyzed by
एंजाइम, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए जो जो सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली क्या है? एंजाइम्स है ना, ये होते हैं बेसिकली दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। प्रोटीनेशियस इन नेचर मतलब प्रोटीन के बने होता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ये याद रखना बात। यस, प्रोटीनेशियस मतलब वो अमीनो एसिड्स के बने हुए, अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन और अमीनो एसिड्स में एक लिंकेज होता है, इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो ये छोटी छोटी बातें मालूम होनी चाहिए। अब जैसे हमने कहा एक रिएक्शन थी, उसमें हमने नॉर्मल कैटलिस्ट यूज किया, और उस कैटलिस्ट को एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने यूज किया प्रोमोटर। तो जिस तरह से एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रोमोटर यूज करते हैं, वैसे ही एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस में एंजाइम की रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वी यूज अ कंपाउंड कॉल्ड कोएंजाइम। एंड कोएंजाइम्स आर बेसिकली द विटामिन्स। विटामिन जो है वो हमारी बॉडी में कोएंजाइम्स का काम करता है। तो कोएंजाइम और विटामिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, बट वो प्रोटीनेशियस नहीं होगा नेचर में, नॉन प्रोटीन होगा, नॉन प्रोटीनेशियस है वो एक तरीके से, एंड दैट इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ द एंजाइम। कोएंजाइम्स आर नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शंस इन व्हिच दे असिस्ट, दे विल ओनली बेसिकली, कोएंजाइम का मतलब है कि एंजाइम के साथ वो असिस्ट कर रहे हैं उसकी रेट को एनहांस करने में, या उस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने में। आई बात समझ में? यस सर। तो coenzymes or vitamins are non-proteinaceous in nature. They are assisting the enzyme. They are functional part of the enzyme. They are assisting the enzyme in enhancing the rate of the biochemical reactions. Now, it is, if you want to convert starch into maltose, the enzyme used is diastase. The starch reacts with water, diastase is enzyme which will convert into maltose, right? Maltose is a disaccharide having the same formula as that of the sucrose. Then maltose will be hydrolyzed in the presence of an enzyme called maltase to produce glucose. तो आपका maltose से क्या बना, मतलब starch से क्या बना, maltose. Maltose बनाने के लिए क्या एंजाइम लगा, diastase. That you need to remember now. Maltose से आपको वो बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, तो उसके लिए एंजाइम उससे मिलता जुलता है, तो maltase is enzyme which is easy. So ये तो याद रखना आसान है। diastase आपको अलग से थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा याद करने के लिए। Yes sir. Is that clear? Yes sir. तो डायस्टेज फॉलोड बाय माल्टेज, तो आप इसको डीएम के फॉर्म में याद कर लो कि डीएम है, ठीक है, डी फॉर डायस्टेज यूज कर लेंगे और एम फॉर माल्टेज यूज करेंगे। अब ग्लूकोज को अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए भी एंजाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड जाइमेस, वो बाद में अभी पढ़ेंगे। एक और एक जो रिएक्शन दिया कि अगर मैं यूरिया लूं और यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करूं तो इट विल प्रोड्यूस अमोनिया एंड CO2, एंड अमोनिया एंड CO2 बनाने के लिए जो एंजाइम लगता है वो लगता है यूरिएज। तो आप इसको एंजाइम की प्रेजेंस में भी कैटलाइज कर सकते हैं रिएक्शन को। नॉन एंजाइमेटिक भी होते हैं ये, जैसे एसिड डाल दो तो भी रिएक्शन हो जाती है। इसी तरह से आपका स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट एसिड की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, या माल्टोज को ग्लूकोज में एसिड की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। तो दीज आर द रिएक्शंस दैट आर कॉमन। सो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें H+ की प्रेजेंस में हो रहा है वो बेसिकली उनको आप बोलेंगे कि वो बेसिकली कैटलिस्ट की तरह फंक्शन करे, नॉर्मल कैटलिस्ट की तरह। लेकिन एंजाइम अगर वो कैटलाइज करे दैट इज कॉल्ड एंजाइमेटिक कैटालिसिस। तो सेम रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड बाय समटाइम्स एसिड्स आल्सो एंड समटाइम्स बाय एंजाइम आल्सो, सो बट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी रिएक्शन। ये एक छोटा सा टेबल है जो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं बेसिकली ये लेता हूं, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना है, तो सुक्रोज एक हमारा बेसिकली डाइसैकराइड है, उसको अगर मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के मिक्सचर को हम बोलते हैं बेसिकली इनवर्ट शुगर। के लिए जो एंजाइम है उसको बोलते हैं इन्वर्टेज। क्या नाम हो गया, इन्वर्टेज। तो ये भी आसान है याद करना। सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट। सो आई थिंक माल्टोज आसान है याद करना, यूरिया से यूरिया ज्यादा आ जाएगा, डायस्टेज के लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, राइट। इन्वर्टेज इज ऑल्सो क्लियर बिकॉज दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर, करेक्ट। यस। अब डायस्टेज, स्टार्च से माल्टोज, डायस्टेज, ये आपको याद करना पड़ेगा। दिस इज एफर्ट यू नीड इट। Maltase is easily rememberable, urea is easily rememberable। यहाँ तक क्लियर है? Yes sir। अब जो हमने ग्लूकोज बनाया, उस ग्लूकोज को अगर मैं इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता हूं तो इस कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर एन एंजाइम कॉल्ड जाइमेज। जैसा मैंने बोला था, जाइमेज एक एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, यानी कि ग्लूकोज का फर्दर जो डिकम्पोजिशन इज डन बाय एन एंजाइम कॉल्ड zymase. So you can see that every enzyme has a particular role.
वी हैव द कैटलिस्ट जो कि आपका डाइस स्टार्च से माल्टोज आता है, स्टार्च से माल्टोज जो है वो तोड़ने के लिए चाहिए आपको डाइस्टेज, माल्टोज से ग्लूकोज बनने के लिए चाहिए माल्टेज, और ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल और CO2 बनाने के लिए चाहिए जाइमेज। तो यू कांट से दैट कि यार मैं स्टार्च में माल्टोज डालूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। स्टार्च में जाइमेज डाल दो, कुछ नहीं होगा। जब तक वो माल्टोज नहीं बनेगा, देयर इज नो रोल ऑफ माल्टेज, और जब तक ग्लूकोज नहीं बनेगा, देयर इज नो रोल ऑफ जाइमेज। जाइमेज विल बी एक्टिंग ओनली ऑन ग्लूकोज, सो दे आर सो स्पेसिफिक, इतने ज्यादा हाईली स्पेसिफिक होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्टेंट्स पे ही अटैक करते हैं। तो एंजाइमेटिक कैटलिस्ट आर वेरी वेरी पर्टिकुलर, वेरी वेरी स्पेसिफिक। आर यू क्लियर विद दीज टू एग्जांपल्स? जाइमेज एंड डाइस्टेज, इनके लिए एफर्ट करना है क्या, किसके कन्वर्जन में यूज होते हैं। एंड स्टमक में प्रोटीन्स का जब ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड में, उसके लिए लगता है पेप्सिन। तो पेप्सी वाला है ये, तो नाम पेप्सी जैसा है बट है पेप्सिन, एंजाइम है, एंड दैट पेप्सिन इज द एंजाइम व्हिच इज कन्वर्टिंग द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यस सर। सर एसिड वाली एक चीज क्या बता रहे थे, मतलब हम एसिडिफिकेशन से भी इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं तीनों रिएक्शंस को? बेसिकली इनमें क्या होता है, इथेरियल लिंकेजेस होते हैं। हाँ सर। और ईथर्स कैन बी क्लीव्ड बाय एसिड्स। यस सर। So they can be cleaved by acid in general, जैसे हम प्रॉपर्टी करते हैं ना ethers की, ethers are cleaved by acid, so obviously these are also catalyzed by acidic catalyst. यस सर। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस जो होता है, जैसे हमने मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल कैटालिसिस पढ़ा, उसकी दो थ्योरीज पढ़ी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, एडसॉर्प्शन थ्योरी, वैसे एंजाइम के कैटालिसिस की भी थ्योरी है। वो क्या है, सिंपल सा है, इसको हम बोलते हैं लॉक एंड की थ्योरी। क्या बोलते हैं? लॉक एंड की थ्योरी। तो ये हमारी की है और ये लॉक है। तो जो सबस्ट्रेट है वो लॉक की तरह फंक्शन कर रहा है, और जो एंजाइम है हमारा, जो कैटालिस्ट है, वो एक की तरह फंक्शन कर रहा है। तो हमारे सबस्ट्रेट में कुछ ग्रूव्स हैं, कुछ डिप्रेशंस हैं, और हमारे जो कैटालिस्ट है, जो एंजाइम है, उसके अंदर कुछ ग्रूव्स जो निकले हुए हैं, और वो ग्रूव्स उसके अंदर जब फिक्स होंगे ना, तो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में ही फिक्स होंगे वो। इसमें जिसमें ये जो डिप्रेशंस हैं वो इस ग्रूव के साथ अगर मैच कर रहे हैं तभी आपस में फिक्स होंगे। लॉक एंड की तो ऐसा है ना कि एक की विल फंक्शन फॉर अ गिवन लॉक, सेम की विल इट फंक्शन फॉर ऑल लॉक्स? नो सर। देयरफॉर दिस की इज यूज्ड ओनली फॉर दिस लॉक। दिस लॉक इज योर सबस्ट्रेट, दिस की इज योर एंजाइम, एंड व्हेन दे विल फिट दे विल बी एबल टू डू दैट। तो यानी कि अगर मैं बेसिकली स्टार्च लूंगा, तो स्टार्च पे मैंने डाला डाइस्टेज, तो डाइस्टेज उसका की है, लेकिन मैंने अगर उसमें स्टार्च की उसकी डाइस्टेज की जगह माल्टेज डाल दिया, तो क्या वो माल्टेज उसका की है? नहीं है। तो की नहीं है तो उसका अंदर रिएक्शन ही नहीं होगी। सो दैट इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस लॉक एंड की अरेंजमेंट। तो इस सबस्ट्रेट के ऊपर जो डिप्रेशन है उसमें लॉक जो लॉक की था उसका जो ग्रूव्स है वो जाके फिट होंगे, और इस तरह का एक एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा which we call enzyme substrate complex, जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। फिर इसी जगह पे जब ये बन गए, दोनों आपस में एब्जॉर्ब हो गए, उसके बाद इस सबस्ट्रेट में कुछ रिएक्शन होगी और ये दो पार्ट में टूट गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, बिकॉज अब उसमें ग्रूव्स है ही नहीं, उसमें डिप्रेशन नहीं है, तो इसके साथ बाइंड नहीं रह सकता, वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जिनके साथ इसका अटैचमेंट हो रहा है। मतलब ये ऐसे नहीं एग्जैक्टली कि लॉक की तरह ही लगता है वहां पे यहाँ लॉक का मतलब है उसके पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स है, इसके पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स है, और फंक्शनल ग्रुप्स आपस में कंपैटिबल है, तो वो आपस में अटैच होता है। आई बात समझ? यस सर। तो इस इतना सिंपल सा प्रोसेस है। अब इसी चीज को अगर आपको प्रोसेस में लिखना हो तो हम क्या कहेंगे, पहला स्टेप क्या है जी? पहला स्टेप है कि बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू द सबस्ट्रेट टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सो E is the enzyme, S is the substrate, they will combine to form the activated complex which is ES, और ये स्टार हम लिखते हैं बेसिकली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। Then second step is the decomposition of the activated complex to form the product. So ये activated complex जो बना उसमें ये decompose करके products बना रहा है, and we write activated complex with ES hash will be equal to E plus P, where E is the one which is regenerated back, so that is only acting as a catalyst. P is the product which is formed in the reaction. So दो separate reaction. इसको बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन होता है जब भी आप ट्रांजिशन स्टेट बनाते हो ना, जैसे आपने SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनाई है। यस सर। तो SN2 की ट्रांजिशन स्टेट ऐसे होती है। हाँ सर, OH एक तरफ से होता है।
ठीक है, मिथाइल के साथ मैं अटैक करा रहा हूँ, ये Br इज अ लिविंग ग्रुप, यस ये बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे OH मान लेता है, वो अटैक करता है। तो जो भी अनस्टेबल स्पीशीज है केमिस्ट्री में वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखती जाती है, एक तो ये फंडा है, ठीक है। और उस स्क्वायर ब्रैकेट पे अगर मैंने ऐसा साइन लगा दिया तो ये उसकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है। एक्टिव मतलब बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट यू कैन से, और एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स। ओके सर। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स का या ट्रांजिशन स्टेट का साइन होता है। यस सर। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली क्लास में पढ़ाते हैं यार, एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, सर वो इक्वल टू नहीं बताया था, बस ट्रांजिशन स्टेट तो पता था। नहीं एग्जाम में तो आ ही सकता है यार, दिस कैन बी शोन, फिर आप सोचोगे ये क्या है, तो दिस ये तो बहुत बेसिक चीज है, इतना मालूम होना चाहिए। तो मतलब मैं पहले लेक्चर में अपनी जीओसी में बता दूंगा कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कैसे उनको डिफरेंशिएट करते हैं, उनके अंदर क्या मतलब कौन सी ट्रांजिशन स्टेट्स आइडेंटिफाइबल हैं, कौन सी इंटरमीडिएट्स आइसोलेट कर सकते हैं, ये तो बहुत लंबा सा कहानी है इसकी। चलो, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। तो बेसिकली जियोलाइट्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, अगर आपको याद हो। एक मैंने ऐसे बताया था कि जो एल्यूमिनो सिलिकेट थे उसमें से कुछ बीच में चैनल्स बन जाता है, यस राइट, ब्लू कलर का ट्यूबिंग अच्छी बनी हुई थी बीच में, राइट, तो वो जियोलाइट थे, तो उनको शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बोलते हैं। शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट जो होता है उनका जो कैटालिटिक एक्शन है या उनकी कैटालिटिक जो रिएक्शन है वो उनके पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, और उनको हम शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस कहते हैं। जियोलाइट्स बहुत ही अच्छे शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहलाते हैं बिकॉज उनका हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाऊं वापस से, तो ये था ये था, ये दिख रहा है। तो यस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये बीच में हेक्सागन पेंटागन बने हुए, राइट, और उसके बीच में ट्यूबिंग जो बनाई हुई है, दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट कि ये चैनल है, दिस इज बीन फॉलोड। ओके, यस सर। समझ गए। यस सर। So now we come back to this shape selective catalyst again. तो honeycomb like structure they have, and इसमें what there is कि इनमें microporous aluminosilicates होते हैं basically ये, and इनका 3-dimensional network बन रहा है aluminosilicates का, in which some silicon atoms are replaced by aluminum atoms giving some AlOSi linkage। तो जैसे सिलिका का स्ट्रक्चर होता है ना, SiO इस तरह से लिंकेज चलता है, तो उसमें से कुछ सिलिकॉन एटम की जगह अगर एल्यूमिनियम आ गए तो एल्यूमिनो सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर बन जाता है। करेक्ट? यस सर। The reaction taking place in the zeolites depend upon the size and the shape of the reactant and the products molecule as well as upon the pores and the cavities of zeolite। तो बीच में जो pores से चैनल बन रहे हैं, जो बीच में कैविटीज बन रही हैं, वो कैविटीज से डिसाइड करता है कि किस तरह के कैटलिस्ट जो है, मतलब वो जो जियोलाइट है वो किस तरह के रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट कर पाएगा। यानी कि ऐसा कोई रिएक्टेंट जो उस पोर में से पास हो सकता है, उस चैनल से पास हो सकता है, वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, बाकी और नहीं कर सकते। तो दैट इज अ स्पेसिफिसिटी ऑफ दोस शेप सेलेक्टिव जियोलाइट्स। ये स्पेशली यूज करते हैं आपका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर। तो जियोलाइट्स बेसिकली पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग में यूज किया जाता है, और ये क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और उनके आइसोमराइजेशन के लिए यूज करते हैं। एक बहुत ही कॉमन जियोलाइट है विच इज कॉल्ड ZSM5 का नाम है, मतलब उसका नाम है ZSM5 कॉमर्शियल नेम। तो ZSM5 जो कैटलिस्ट है, दैट इज यूज्ड फॉर बेसिकली द डिहाइड्रेशन ऑफ पेट्रोल इनटू द अल्कोहल। तो हाइड्रोकार्बन डिहाइड्रेशन ऑफ, उसमें बेसिकली अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करके उसमें हाइड्रोकार्बन जनरेट करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो यूज किया जाता है। ये जो हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग के लिए यूज करते हैं, तो ये प्रोसेस है जो यूज किया जाता है। और ZSM5 इज द करस्पॉन्डिंग एंजाइम व्हिच इज यूज्ड।
Are you okay with this? Yes sir, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मतलब आइसोमराइज करना हो। क्रैकिंग का मतलब होता है कि आप उनको ब्रेक करते हैं, पायरोलिसिस होता है उनका। अच्छा पायरो का मतलब होता है हीट, हाँ लाइसिस सर। का मतलब ब्रेकिंग। अब सवाल आता है कि क्या कैटलिस्ट अमर है, क्या हमेशा जिंदा रहते हैं, कि कैटलिस्ट कभी मरते नहीं है? तो ऐसा नहीं है, कैटलिस्ट को मारा जा सकता है। सो दे कैन डाई फ्रॉम व्हाट, इफ यू आर गिविंग देम सम पॉइजन्स, तो जहर दोगे तो बेचारे मर ही जाएंगे। तो जैसे इंसानों को जहर देके मारा जाता है, वैसे कैटलिस्ट को भी जहर देके मारा जा सकता है। या अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो बहुत बड़ा है, वो अगर कैटलिस्ट के ऊपर आ जाए तो कैटलिस्ट का रोल ही खत्म कर दिया उसने, उसके आसपास उसने उसको सराउंड कर लिया पूरी तरह से, एनकैप्सूल कर लिया, so that can stop the functioning of the catalyst. So catalyst can not even, they will not die, in the sense that they will not be able to perform their function. So if they are not able to perform their function, that means they are as good as dead, right? So larger molecules will cover the catalyst, so that is also possible. And sometimes we can say we can heat the catalyst. हमने catalyst को heat कर दिया, इतना heat कर दिया कि यार उस समय उसके जो structure है वो सारा बिखर गया। अगर structure ही dismantle हो गया, उसका basic structure is gone, skeleton is gone, तो वो catalyst की तरह function नहीं कर पाएगा। Overheating and sometimes even over pressurizing can cause the catalyst to die. And the catalyst can also die after pressurizing to such an extent that you crumble them. तो उनको दबा के, उनको crush करके उनको मार दिया जाए तो भी possible है। So catalysts are not always there for they will not remain active for n number of years. So they will also have a definite life. सर ओवर यूज की वजह से कभी खत्म नहीं हो सकते, एक्सेसिव यूज हम लोग कर लें उसका। ओवर यूज भी हो रहा है, बिकॉज अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद देखोगे तो उसकी एक्टिविटी जो धीरे धीरे कम होने लगती है, और जब कम होने लगती है तो आपकी जब इंडस्ट्री में कैटलिस्ट यूज किया जाता है तो वहां पर क्या है कि प्रोडक्टिविटी मेक्स अ डिफरेंस, है ना। प्रोडक्टिविटी तो अच्छी चाहिए चाहिए। अगर मैं कैटलिस्ट यूज करता रहूंगा, वही यूज करता रहूंगा, सोचूंगा यार नया इन्वेस्टमेंट नहीं करो, नया ना करो, तो क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने की वजह से आपका माल कम बनेगा तो बिकेगा कम, तो प्रॉफिट वहां से कम हो गया। तो आपने सोचा मेरा मैं इन्वेस्ट नहीं करूं तो प्रॉफिट भी कम हो गया। तो दैट इज ऑलवेज वाइज दैट कि यू कीप ऑन रिप्लेसिंग दिस कैटलिस्ट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो उनकी एक नॉर्मल साइकिल होती है, अलग अलग कैटलिस्ट। जैसे अमोनिया इंडस्ट्री में जो आयरन यूज करते हैं वो रफली 3 महीने बाद रिप्लेस करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, चलो अगला पार्ट है इस टॉपिक का जो सबसे अहम पार्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। रादर आप समझ लो कि इस टॉपिक का 60% पार्ट कोलॉइड है, 40% पार्ट आपका एड्सॉर्प्शन और कैटालिसिस है। तो ये इस तरह से डिवाइडेड है, आप समझ लो। तो 60% पार्ट अभी हमें करना है कोलॉइड्स का। तो बेसिकली एक साइंटिस्ट था थॉमस ग्राम, उसने क्या किया, सॉलिड्स को क्लासिफाई किया। सॉलिड्स को क्लासिफाई किया इनटू 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड क्रिस्टलॉइड, अनदर इज कॉल्ड कोलॉइड। अभी जो क्लासिफिकेशन था वो इस बात पर बेस्ड था कि अगर एक मैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन लूं, ठीक है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई चीज पास हो जाएगी तो हम उसको कहेंगे क्रिस्टलॉइड है, अगर पास नहीं होगी तो हम कहेंगे कोलॉइड है। सो इट इज द क्लासिफिकेशन वाज सिंपली बेस्ड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द particles to pass through the parchment membrane. If they are able to pass through the parchment membrane, we call them as crystalloid. If they are unable to, we call them as colloid. आई बात समझ? यस सर। अब this classification was not very बहुत stringent classification नहीं था, और इस classification में कुछ flaws थे। तो flaws होने की वजह से इस classification को reject कर दिया। अब flaw क्या था कि मैंने एक कहा कि एक given set of compound जो है, solute जो है, वो एक कंडीशन के अंदर विल एक्ट एज क्रिस्टलॉइड, और किसी और कंडीशन में द सेम कंपाउंड विल एक्ट एज कोलॉइड। तो ये तो फिर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ ना, क्योंकि आप कह रहे हैं एक कंपाउंड या तो क्रिस्टलॉइड होगा या कोलॉइड होगा। बट अगर दो अलग अलग सिचुएशन में एक में कोलॉइड एक्ट कर रहा है, एक में क्रिस्टलॉइड एक्ट कर रहा है, तो फिर मैं उसको क्या बोलूं, कोलॉइड बोलूं, क्रिस्टलॉइड बोलूं? तो वो तभी मैं डिफाइन कर पाऊंगा जब मैं उसके साथ साथ वो कंडीशन भी डिफाइन करूंगी जिसमें उसको यूज किया गया। आई बात समझ? यस सर। So what is important here is that कि आप सोचो मैंने लिया NaCl, NaCl को पानी में डाला, NaCl पानी में डिसॉल्व कर गया, करेक्ट। फिर मैंने NaCl को लिया बेंजीन में और उसको बेंजीन में डाला, बेंजीन में डिसॉल्व नहीं किया। अब मैंने पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगाई इस NaCl एंड वाटर के अगेंस्ट, तो NaCl को वाटर के अगेंस्ट जब पार्चमेंट मेम्ब्रेन बीच में लगा दी
तो आपने देखा यहाँ से NaCl पास हो गया, इधर चला गया, NaCl इधर आने लग गया राइट साइड में, इसका अंदर डिफ्यूज हो रहा है। तो इसमें NaCl इज व्हाट, क्रिस्टलॉइड, राइट। Yes. दूसरे केस में NaCl जब बेंजीन में पड़ा था, पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगाई तो वो यहीं रहा, वो इधर मिला ही नहीं। जब इधर नहीं आया तो इसका मतलब मूव ही नहीं किया, डिफ्यूज ही नहीं किया। जब डिफ्यूजन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, दिस एक्टिंग एज कोलॉइड। तो इसका यहाँ पार्टिकल साइज बड़ा रहा होगा, यहाँ पार्टिकल साइज छोटा था, इस वजह से यहाँ पास हो पाया, यहाँ नहीं हो पाया। तो इसका मतलब है वो उसकी स्टेट दोनों की अलग अलग थी, बिकॉज यहाँ पानी में डाला था, यहाँ बेंजीन में डाला था। सो दैट वाज डिफरेंट। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से इज कि सेम कंपाउंड व्हिच वाज एक्टिंग एज कैटलिस्ट, acting as colloid or crystalloid will depend upon the state in which it was present. So therefore it is not right to say that कि ये basically वो colloid हुआ या crystalloid हुआ। तो उसके साथ साथ आपको कंडीशन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। इसी तरह से जैसे आप सोप को पानी में डाल दें, सोप को अगर मैं पानी में डालूं एक कंडीशन, दूसरा सोप को मैंने डाल दिया अल्कोहल में, तो सोप को पानी में डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, कोलॉइड बन जाता है। सोप को अगर मैं अल्कोहल में डालता हूं तो क्रिस्टलॉइड बन जाता है। तो ये क्रिस्टलॉइड है, ये कोलॉइड है। इसको पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास किया तो ये सोप जो पानी में डाला वो पास ही नहीं हुआ वहां से, क्योंकि वो क्रिस्टलॉइड बना हुआ है। और यहाँ पर कोलॉइड बना हुआ है। और जब सोप को इथेनॉल में डाला है तो उसके थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो गया, क्योंकि दिस एक्टिंग एज अ क्रिस्टलॉइड। So therefore, under the different conditions, the same compound can behave as both. So therefore, this classification was not the right one. It was discarded. So classification was done based upon. अब basically classification किस basis पे होना चाहिए था, सोचो। NaCl जब बेंजीन में डाला तो पास नहीं हुआ, NaCl पानी में डाला तो पास हुआ। तो पास क्यों हुआ, क्योंकि उसका पार्टिकल साइज क्या था, छोटा था। पास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पार्टिकल साइज क्या था, बड़ा था। तो पार्टिकल साइज द वन which could decide between crystalloid and colloid. I would say colloid और crystalloid में डिफरेंस क्या है, पार्टिकल साइज का। हम colloid तब बोलते हैं जब पार्टिकल का साइज इज वेराइंग बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर्स। तो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा तो हम उसको colloid कहेंगे। तो nature of a substance, whether crystalloid or colloid, depends upon the size of the solute particle. That's right. Yes, sir. When the size of the solute particle lies between 1 nanometer to 1000 nanometer, it behaves like a colloid. अब 1 नैनोमीटर से अगर कम होगा साइज तो हम उस सोल्यूशन को बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन, जो एक तरह से क्रिस्टलॉइड है। कौन सा है वो, क्रिस्टलॉइड है। और अगर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाए तो बहुत बड़ा है, तो उसको कहते हैं वो धीरे धीरे करके सेटल डाउन हो जाता है अपने आप, उसको सस्पेंशन बोलते हैं। तो सस्पेंशन आर द वन हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ मोर देन 1000 nanometer. Less than 1 nanometer is your true solution. So if the size of the solute particle is greater than 1000 nanometer, exists as suspension, and if the particle size is less than 1 nanometer, exists as true solutions. Am I right? Yes, sir. So colloidal solution एक heterogeneous solution होगा, heterogeneous nature का होगा, और उसमें 2 phases होंगे। एक phase जो आपका जो dissolve हो रहा है, जो suspended है kind of रहेगा, जिसका particle size बड़ा है, वो phase कहलाता है disperse phase। और जिसमें वो प्रेजेंट है, जो सॉल्वेंट की तरह फंक्शन कर रहा है, दैट इज योर डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्शन मीडियम इज लाइक सॉल्वेंट एंड डिस्पर्स फेज इज लाइक सोल्यूट, बट वी डोंट यूज द टर्म सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हियर, वी यूज द टर्म डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। सो डिस्पर्स फेज विल बी डीपी एंड डिस्पर्शन मीडियम विल बी डीएम। करेक्ट। डीपी मतलब डिसॉल्व हो रहा है जो पार्टिकल। डिसॉल्व पूरी तरह से नहीं होता, क्योंकि पूरी तरह से अगर डिसॉल्व होता है तो ट्रू सोल्यूशन, तो ये पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं है, इसलिए हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है। तो हेट्रोजीनियस फेज में कंपोनेंट व्हिच रन इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज, जो बेसिकली जो पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिसके कोलॉइडल डायमेंशन के पार्टिकल है, और जो ज्यादा अमाउंट में है वो डिस्पर्शन मीडियम। यस सर। द मीडियम इन व्हिच द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्शन मीडियम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोलॉइडल पार्टिकल डिस्पर्स्ड होता है, ऐसे अलग अलग जगहों पे प्रेजेंट है। There are 2 phases. The 2 phases can be solid, liquid or gas, and there are 8 different types of colloidal solution. ये 8 different colloidal solution क्या है वो हम बात करते हैं। वैसे तो 3 फेज है, solid, liquid, gas, so 3 into 3 9 होना चाहिए, लेकिन gas in gas is not a colloidal solution। तो colloidal solution 8 टाइप के होते हैं, gas in gas को एक्सक्लूड कर लो। If colloidal solution has fluid-like appearance तो हम उसको सोल बोलते हैं। तो जब भी उसमें fluid-like appearance होता है तो उसको हम सोल बोलेंगे। And the dispersion medium in such cases is generally liquid। तो जब वो fluid-like tendency होगी तो उस केस में dispersion medium generally क्या होगा,
लिक्विड होगा। यस सर। अब इनके कुछ नाम्स में यूज करते हैं। अगर डिस्पर्शन मीडियम पानी है तो उसको हम हाइड्रोसोल बोलते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर। When the dispersion medium is alcohol, we call it alcohol. If the dispersion medium is benzene, it is called benzosol. The dispersion medium is gas, it is called aerosol. सर तो जो NaCl हमने बेंजीन में डाला था वो बेंजोसॉल था। NaCl हमने बेंजीन में डाला था वो बेंजोसॉल था। हाँ, तो NaCl in benzene will be acting as a, जिसमें dispersion medium benzene हो गया और disperse phase आपका NaCl हो गया, और dispersion medium क्योंकि बेंजीन है तो उसमें वो जो कोलॉइडल पार्टिकल किस डायमेंशंस का बन रहा है तो उसको बेंजोसॉल बोलेंगे। सो दैट इज NaCl in benzene will be benzosol for sure. सर लेकिन उसमें NaCl में क्या फ्लूइड लाइक प्रॉपर्टी सच में आ जाएगी मतलब? वो तो नहीं, फ्लूइड लाइक प्रॉपर्टी तो डिस्पर्शन मीडियम की, डिस्पर्स फेज की थोड़ी होती है। हाँ सर। अच्छा, अब डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड हो, डिस्पर्शन मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। यस। तो सॉलिड को जब मैंने लिक्विड में डाला तो हम उसको सॉल बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें फ्लूइड लाइक टेंडेंसी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। So this is solid and liquid is called sol, or example could be some gold sol, silver sol, some paints, arsenic sulfide, ferric hydroxide, antimony sulfide, even आप इसमें वो ले सकते हो गोल्ड सोल तो लिख ही लिया, प्लैटिनम सोल, या आपका सल्फर सोल, फॉस्फोरस सोल। तो मेटल के, नॉन मेटल के सोल्स, सल्फाइड सोल्स, हाइड्रोक्साइड सोल्स, ऑक्साइड सोल्स, ये सब इसमें आएंगे। इवन जिलेटिन, स्टार्च, गम, ये सब यहाँ पे आएंगे। तो बहुत लंबी लिस्ट है उसकी, तो दैट विल टॉक लिटिल लेटर। सॉलिड इन सॉलिड विल बी कॉल्ड सॉलिड सोल। उसमें फ्लूइड लाइक टेंडेंसी नहीं होती है, बट फ्लूइड लाइक टेंडेंसी तभी हो सकती है जब ये जो बेसिकली सॉलिड इन लिक्विड में आप अमलगन्स भी ले सकते हैं। अमलगन्स भी ले सकते हैं बिकॉज लिक्विड जो मरकरी होता है वो मरकरी एक लिक्विड होता है और उसके अंदर आपने सॉलिड मेटल डाला होता है। सो लिक्विड इन सोल के एग्जांपल्स में अमलगन्स भी ले सकते हो यहाँ पे। लेकिन सॉलिड इन सोल में उनको नाम सॉलिड सोल कहते हैं और उनको बेसिकली उनके एग्जांपल्स कुड बी एलॉयज। तो ब्रास है, ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जानता है? हाँ सर, नाम सुना तो है, जैसे नॉर्डिक गोल्ड हो गया, जर्मन सिल्वर हो तो गया। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, इम्पोर्ट, पहली बात तो याद रखो। यस। और जर्मन सिल्वर में ब्रास जो होता है, ब्रॉन्ज जो होता है उसके एलिमेंट होते हैं। ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है? कॉपर और जिंक। यस। तो इसमें भी कॉपर जिंक तो होते ही है, नहीं कॉपर और टिन, सॉरी, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता है। तो कॉपर एंड टिन आर देयर इन दिस, एंड अलोंग विद द कॉपर एंड टिन इसमें जर्मन सिल्वर के अंदर निकल होता है। यस सर। तो ये पॉइंट ध्यान रखने का। सॉलिड इन गैस में अगर आप देखेंगे तो गैस में भी फ्लूइड लाइक टेंडेंसी होती है, उसको एरोसोल बोलते हैं। तो नॉर्मल सोल से डिफरेंशिएट करने के लिए उसको एरोसोल बोलते हैं। अभी बताया था डिस्पर्शन मीडियम अगर गैस हो तो क्या बोलते हैं? एरोसोल। एरोसोल। तो इसमें बेसिकली सॉलिड अगर गैस में होगा तो क्या होगा? स्मोक उस तरह का है, स्मोक में जो पार्टिकल्स हैं वो आपके सॉलिड हो गए और जो एयर के अंदर है वो तो स्मोक की तरह फंक्शन करेगा। तो स्मोक इज बेसिकली एन एरोसोल in which the dispersed phase is your solid, dispersion medium is a gas. Dust के particle suspended in air is also a aerosol. Correct? अब liquid अगर dispersed phase हो और dispersion medium solid हो, तो solid dispersion medium में अगर liquid है तो उसको जेल बोलते हैं। ये स्पेसिफिक नाम है। जेल में एक लूज स्ट्रक्चर होता है हमेशा, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली डिस्पर्शन मीडियम जो है वो हमारा सॉलिड होता है, और सॉलिड के अंदर आप देखेंगे लिक्विड जो है डिस्पर्स फेज के फॉर्म में इंटरस्पर्स रहता है। तो जेल के एग्जांपल्स क्या है? यू कैन हैव जेलीज जो हम यूज करते हैं, टेबल जेलीज जो होती हैं, जैम जो है, चीज जो है, पर्ल जो है, पर्ल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। तो उसमें आप देखोगे कि पर्ल का, अगर आप कभी पर्ल को काटे ना तो आपको दिखेगा अंदर, उसके अंदर क्या दिख रहा है? अंदर उसके अंदर लिक्विड होता है, वो ऐसा फ्लोइंग टाइप ऑफ लिक्विड होता है, तो मोल्टन जैसा होता है ना उस तरह का। तो यू विल फाइंड दैट कि पर्ल आप ऐसा बाहर से देखने को आपको पूरा सॉलिड लग रहा है, लेकिन वो अंदर अगर उसको कट करें तो उसके अंदर लिक्विड होता है, तो वो उसका डिस्पर्स फेज दिखता है। लिक्विड इज नोन बाय स्पेशल नेम कॉल्ड एमल्शन। और एमल्शन भी दो टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर एमल्शन एंड वाटर इन ऑयल एमल्शन। उसमें कॉमन एग्जांपल है मिल्क। तो मिल्क बेसिकली वाटर इन ऑयल टाइप एमल्शन होता है, और दूसरे होते हैं एमल्सिफाइड ऑयल्स। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको हर टाइप के वो याद रखने पड़ेंगे। लिक्विड को जब गैस में डालेंगे, लिक्विड इन गैस इज कॉल्ड लिक्विड एरोसोल।
ठीक है, तो एरोसोल तो जैसे गैस है तो उसको एरोसोल तो बोल ही सकते हैं। अगर डिस्पर्शन मीडियम गैस है, यानी कि सॉलिड इन गैस इज कॉल्ड एरोसोल, लिक्विड इन गैस इज कॉल्ड एरोसोल, तो बोला, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लिक्विड एरोसोल बोल दिया। तो सॉलिड इन गैस इज कॉल्ड aerosol, liquid in gas is therefore referred as liquid aerosol, liquid in liquid is called emulsion, liquid in solid is called gel। तो जेल, emulsion, liquid aerosol, ये तीनों स्पेसिफिक नाम है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजन यही ज्यादा होते हैं। अब लिक्विड गैस में का मतलब एयर के अंदर लिक्विड कभी सस्पेंडेड देखा है? आप अगर कभी किसी वाटरफॉल के पास चले जाओ, वाटरफॉल के पास जाओगे तो वहां पे जब वाटरफॉल गिर रहा होता है तो बहुत सारे जो पार्टिकल हैं, वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, वो छोटी छोटी बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। और वो जब हवा चल रही होती है आपके पास, अगर आप बहुत दूर भी खड़े हैं, 500 1000 मीटर भी दूर है, तो आपके पास वो पार्टिकल्स आते हैं और आपको फेस का ऐसे टच करते हैं, राइट। तो वो बेसिकली क्या है, दैट इज कॉल्ड मिस्ट। तो मिस्ट जो है वो आपका बेसिकली क्या है कि गैस के एयर के अंदर बेसिकली लिक्विड के पार्टिकल जो है, लिक्विड के ड्रॉपलेट जो है वो सस्पेंडेड होते हैं, and they are the one which is mist. So mist is an example of liquid aerosol. Similarly, you can say fog and clouds are also similar examples of liquid aerosol. Gas in a solid, अगर dispersed phase gas हो जाए, solid dispersion medium है, तो gas in solid is called solid foam। और जैसे pumice stone होता है, pumice stone जैसे कई बार आप वहां चले जाएंगे किसी बीच पे, तो बीच पे आपको दिखेगा कि वहां पे मतलब बीच पे तो नहीं, कुछ सी ऐसे होते हैं जहां पे आपको उसके आसपास जो उसके शोर्स होते हैं वहां पे कुछ रॉक्स पड़ी होंगी, और रॉक्स जो है वो काफी पोरस रॉक्स होती हैं। उन पोरस रॉक्स पे आप देखेंगे बहुत सारे इंसेक्ट्स आपको वहां पे मिलेंगे, और उनका रीजन ये होता है कि उन पोरस रॉक्स के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है, और उस ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने की वजह से इंसेक्ट्स की ग्रोथ बेटर हो पाती है। तो इंसेक्ट्स फाइंड दोज रॉक्स एज their own homes and they are treated as shelters। तो वो बेसिकली प्यूमाइस स्टोन जो की तरह फंक्शन करता है। जैसे कभी आपने प्यूमाइस स्टोन देखा हो, आपकी जैसे पैरों की एड़ियों की जो स्किन है वो हार्ड होती है, उसको रब करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जो स्टोन यूज करते हो घर में, वो प्यूमाइस स्टोन है, जिसमें अभी मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो गैस इन सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड फॉर्म विच इज प्यूमाइस स्टोन। गैस इन अ लिक्विड इज सिंपली कॉल्ड एज फोम विच इज बेसिकली सोप लादर या whipped क्रीम होता है। कुछ एग्जांपल्स अगर आपको देखना है तो ये एग्जांपल बेसिकली चीज का है। चीज इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिकली जेल। तो जेल का एग्जांपल ये चीज है, या ये है whipped क्रीम। whipped क्रीम का एग्जांपल इज द बेसिकली फोम, ये फोम है बेसिकली। दिस इज बेसिकली पर्ल्स। पर्ल्स जो है आपके जेल के एग्जांपल है। एंड दिस इज द प्यूमाइस स्टोन। प्यूमाइस स्टोन इज दिस वन। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड फोम। Paints are the example of solid and liquid, right? And this is your soap lather, which is an example of the last one where gas was there in the liquid. So gas and liquid is the foam. Rubber is a latex. Latex जो है is an example. Rubber is an example of solid in a liquid. Solid in a liquid जो है जो आपका जिसको नॉर्मल हम सोल कहते हैं उसका एग्जाम्पल है। Milk is an example of emulsion, which is basically liquid and oil type का emulsion, and liquid and oil type का emulsion is milk. Cheese is an example of your butter. Sorry, butter जो है, butter is an example of butter basically बहुत यूनिक फीचर है। बटर का यूनिक फीचर ये है कि है सर इमल्शन हो गई। बटर जो है वो आपका लिक्विड इन सॉलिड है, जेल होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा हीट कर दोगे तो ये मेल्ट कर जाएगा, तो मेल्ट कर जाएगा तो लिक्विड लिक्विड बन जाता है, वो इमल्शन बन जाता है। तो लोअर टेम्परेचर्स पे इट विल बी जेल, हायर टेम्परेचर इट विल बी इमल्शन। तो रूम टेम्परेचर पे हम उसको जेल लिखेंगे, जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो देन इट विल बिकम एन इमल्शन। मतलब रादर रूम टेम्परेचर पे, सॉरी रूम टेम्परेचर जेल नहीं लिखेंगे, इमल्शन। क्योंकि अगर आप बटर को रूम टेम्परेचर रखेंगे तो मेल्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा सर, करेगा। और बटर को जब आपको फ्रीज करके रखना होता है, ठंडा रखना होता है, तब जाके वो सॉलिडिफाई होता है। तो सॉलिड में डिस्पर्शन मीडियम हो और उसमें लिक्विड हो तो वो जेल तब होगा जब वो ठंडा होगा। तो यानी कि लोअर टेम्परेचर्स पे वो जेल है, रूम टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर्स पे इमल्शन है, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट फेजेस। तो हमारे दो फेज थे, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम। इनके इंटरैक्शन के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, बड़ा सिंपल सा है।
एक क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। फिलिक का मतलब होता है अफेक्शन, फोबिक का मतलब होता है नफरत। तो अगर अफेक्शन है तो फिलिक है, नफरत है तो फोबिक है। लायोफिलिक और लायोफोबिक, these are the names given for basically the colloids। तो लायोफिलिक का मतलब ये हुआ कि जो उसके दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट कौन है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम, इनके बीच में काफी अफेक्शन होगा। अफेक्शन का मतलब क्या मतलब हुआ, यहाँ पे उनके बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी का मतलब उसके बीच में इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर उनके बीच में इंटरेक्शन बहुत वीक है या नहीं है तो वो कैसे कॉलॉइड्स कहलाएंगे, लायोफोबिक कॉलॉइड्स। आई बात समझ में? यस सर। अब अगर किसी में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा? इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, देयर इज अ स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग बिटवीन देम, बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग है तो क्या होता है, सॉलिड स्टेबल हुआ ना। सो लायोफिलिक कॉलॉइड्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कॉलॉइड्स। आई बात समझ में? यस सर। अब इंटरेक्शन क्योंकि स्ट्रॉन्ग है लायोफिलिक का, तो उसका एक फायदा भी है कि आप इनको सिंपल दोनों की मिक्सिंग से बना सकते हैं। उनको बनाने के लिए सिंपल मिक्सिंग नहीं चलेगी क्योंकि वो आपस में मिलेंगे नहीं। आप एक दूसरे का नफरत करते हैं तो इतनी आसानी से थोड़ी मिलेंगे, कोई बीच में इंटरमीडिएट डालना पड़ेगा जो उनको आपस में मिलने के लिए मजबूर करे। तो बेसिकली ये लायोफोबिक कॉलॉइड्स आर नॉट वेरी स्टेबल। ये आपस में सेपरेट रहते हैं, मतलब इनको मिलाने के लिए वी नीड टू ऐड समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। सो बेसिकली लायोफोबिक कॉलॉइड्स आर नॉट दैट स्टेबल एज कंपेयर्ड टू लायोफिलिक। लायोफिलिक कॉलॉइड्स रिवर्सिबल भी होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि अगर मैं इन दोनों को ले रहा हूं और मिला रहा हूं, मिला के मेरा लायोफिलिक कॉलॉइड बन गया, फिर मैंने से इसमें से डिस्पर्शन मीडियम उड़ा दिया, डिस्पर्स फेज रह गया, फिर डिस्पर्स फेज में वापस से डिस्पर्शन मीडियम डाला, शेक किया, फिर से बन गया। लेकिन लायोफोबिक कॉलॉइड में ऐसा नहीं होगा। डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम है, लायोफोबिक कॉलॉइड बना हुआ है, मैंने इसमें से डिस्पर्शन मीडियम उड़ा दिया, डिस्पर्स फेज रह गया, फिर से उसको लाया और उसको शेक किया, नहीं बनेगा। That is irreversible. So lyophobic colloids are irreversible, lyophilic colloids are रिवर्सिबल। reversible। आई बात समझ में? यस। कुछ ये पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया अभी, और जैसे जैसे आएंगे और हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो इन द केस ऑफ lyophilic colloids, the disperse phase has a great affinity for the dispersion medium. In such cases, the disperse phase does not easily get precipitated and the colloids are quite stable। आई बात समझ में? यस सर। The solids obtained after evaporation of the dispersion medium can be easily brought back to the colloidal state by shaking the solid with the dispersion medium. Such solids are called colloids are called reversible colloids। Correct? यस सर। एग्जाम्पल क्या है? गम है, खुशी है, जिलेटिन है, मतलब गम है, जिलेटिन है, स्टार्च है, प्रोटीन है और कुछ पॉलीमर्स भी हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सो ये सब एग्जाम्पल्स किसके? लायोफिलिक कॉलॉइड्स के। अब बेसिकली इनमें सबसे कॉमन चीज क्या है? गम हो चाहे जिलेटिन हो, स्टार्च हो, प्रोटीन हो, सारे मॉलिक्यूल बड़े बड़े मॉलिक्यूल है। तो ये बिगर मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं, नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस, दे आर बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड। राइट? यस सर। अब प्रोटीन्स में क्या होता है? प्रोटीन्स जो है आपके उसमें NH2 ग्रुप होते हैं, अमीनो ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, और जब वो पानी में डालते हैं तो उनके साथ उनका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यस सर। इंटरेक्शन क्यों स्ट्रॉन्ग है आपको समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? यस सर। ये जो स्टार्च होता है, जिलेटिन होता है, इनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप पानी के साथ डिस्पर्शन मीडियम के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करेंगे नहीं करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे सर। इसलिए लायोफिलिक कॉलॉइड्स हैं। राइट? तो रीजनिंग भी समझ में आनी चाहिए। अगर पानी यूज होगा डिस्पर्शन मीडियम तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लायोफिलिक कॉलॉइड की जगह हाइड्रोफिलिक कर देंगे नाम। क्या बोल देंगे? हाइड्रो। लायोफोबिक कॉलॉइड्स क्या थे? जिनके बीच में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में उतनी एफिनिटी नहीं है, they have little affinity। In case of lyophobic colloids, the disperse phase and the disperse phase has little affinity for the dispersion medium. These salts are relatively less stable. They can be easily precipitated by the addition of small amount of electrolyte। तो ये उतने स्टेबल स्ट्रॉन्ग मतलब स्टेबल नहीं थे ना, तो थोड़ा सा बाहर से इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दो तो उनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जिसको हम कोएगुलेशन बोलते हैं। और एक बार सोल कोएगुलेट कर गया तो इट कैन नॉट बी इजिली ब्रॉट बैक टू द क्लोराइडल सॉल्यूशन, क्लोराइडल स्टेट, दे आर काइंड ऑफ इरिवर्सिबल। या उसको मैंने बताया कि डिस्पर्शन मीडियम को उड़ा दो, डिस्पर्स फेज रह जाएगा,
फिर से डिस्पर्शन मीडियम डाल के शेक करोगे तो वो वापस से क्लोराइड नहीं बनता, बिकॉज इनको बनाने के लिए यू नीड टू ऐड समथिंग एल्स, नॉट डायरेक्ट मिक्सिंग कैन नॉट बी फॉर्म। यानी कि आप डिस्पर्शन अगर लायोफिलिक क्लोराइड और लायोफोबिक क्लोराइड में कहें तो प्रिपरेशन आसान किसका, लायोफिलिक क्लोराइड का, क्योंकि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को सिंपली मिक्स करना और शेक करना। इन दोनों को आपस में सिंपली मिक्स करने से नहीं बनेंगे, यू रिक्वायर स्पेशलाइज्ड मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग लायोफोबिक क्लोराइड। तो लायोफोबिक क्लोराइड्स के प्रिपरेशन हमें अलग से पढ़ने पड़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जितने भी वो पहले मैंने सोल बताए थे, पेंट है, मेटल सोल है, नॉन मेटल सोल है, सल्फाइड सोल्स हैं, हाइड्रोक्साइड सोल्स हैं, ऑक्साइड सोल्स हैं, वो सब इसके लायोफोबिक क्लोराइड के टाइप हैं। गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, प्लैटिनम सोल, सल्फर सोल, फास्फोरस सोल, AS2S3 सोल, Sb2S3 सोल, FeOH whole 3 सोल, और SnC SnOH whole 4 2- सोल, ये सारे के सारे सिल्वर हाइड्राइड सोल्स, ये सब कैसे लायोफोबिक टाइप के क्लोराइड्स होंगे। अगर पानी इसमें डिस्पर्शन मीडियम होगा तो यू विल कॉल देम एज हाइड्रोफोबिक क्लोराइड, करेक्ट। सर एक चीज समझ नहीं आई, जैसे आपने बोला लायोफिलिक कोलॉइड्स आर स्टेबल क्योंकि इंटरेक्शन उनमें अच्छा है, लेकिन लायोफोबिक कोलॉइड्स में जैसे इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो एक बार प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, तो वो स्टेबल ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो दोबारा किसी से रिएक्ट कर ही नहीं रहा है, आपने बताया दोबारा शेकिंग से तो कुछ बनेगा नहीं। नहीं देखो, आप समझे नहीं। अगर दो चीजें हैं, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, इनकी एनर्जी को चाहिए, आपने मिक्स किया तो इनकी मिक्स होने से इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन हुआ तो क्या एनर्जी रिलीज हो रही है? यस सर। तो इंटरेक्शन विल लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी रिलीज हुई तो लोअर एनर्जी हो गई इनकी, हुई। यस। दूसरा मैंने डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम, उनके बीच में इंटरेक्शन कम था, एनर्जी रिलीज हुई लेकिन बहुत कम हुई, तो इनकी एनर्जी ज्यादा, इनकी एनर्जी कम है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? नीचे वाला, राइट। अच्छा सर। तो जहां ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जहां ज्यादा एफिनिटी होगी, so it's like you think of two families. In one family the bonding between people is good, and other family the bonding is like kind of not very good. No, I'm not saying कि नहीं है, but this is not very strong. People don't take care of each other so well, so therefore you will find that कि कौन सी family ज्यादा stable है, जिसमें bonding ज्यादा है, जिसमें bonding कम है, बॉन्डिंग ज्यादा है। so that is what we say. यस सर। अब मेरे पास लायोफोबिक सोल और लायोफिलिक सोल का कंपैरिजन देखते हैं कि ये क्या क्या कंपैरिजन, कुछ चीजें हम ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं, कुछ चीजें एडिशनली अभी आपकी आएंगी। तो पहले तो लायोफोबिक वाले सोल जो होते हैं वो कम स्टेबल थे, ये हमें पता लग गया। यस सर। उनमें चार्जेस होते हैं, बेसिकली उनको मैंने बताया कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को जब मिक्स करने डायरेक्ट से तो बनता नहीं है, उनमें हमें कुछ चीज डालनी पड़ती है उनको स्टेबलाइज करने के लिए, वो एग्जिस्ट कर पाए। तो वो चीज जो डालते हैं उससे कुछ चार्जेस आ जाते हैं, तो चार्जेस आने की वजह से कोलॉइडल पार्टिकल्स इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे, ठीक है। कोलॉइडल पार्टिकल्स आर लायोफोबिक, कोलॉइड्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। उनका क्या पर्पस है वो भी थोड़ी देर में समझ में आएगा। एंड ऑन द अदर हैंड लायोफिलिक कोलॉइड जो होंगे वो मे और मे नॉट बी चार्ज, जनरली वो चार्ज नहीं होते, थोड़े बहुत चार्ज कभी कुछ हो सकते हैं, बट नॉट जनरली चार्ज। दूसरा है कि स्टेबिलिटी जो है वो प्रॉपर्ली इन चार्जेस की वजह से होती है, क्योंकि अगर आप सोचो कि मेरा कोलॉइडल पार्टिकल यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों अगर अनचार्ज होते लायोफोबिक कोलॉइड में तो दोनों पास पास आए थे और एक दूसरे से जुड़ के बड़ा पार्टिकल बन जाते। बड़ा पार्टिकल होता तो सस्पेंशन टाइप हो जाता और वो नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो जाता। कोलॉइडल पार्टिकल का मतलब, कोलॉइडल सॉल्यूशन का मतलब कि डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डिस्पर्स फेज आपका स्प्रेड रहे और वो वहीं रहे। ऐसे अगर वो बॉटम पर सेटल डाउन हो जाएगा तो सस्पेंशन बन जाएगा, ठीक है। उसको ग्रेविटेट नहीं होने देना, उसको हमेशा सस्पेंशन स्टेज में रहना देना है, उसको सस्पेंडेड स्टेट में रहना चाहिए, डिस्पर्स फेज में रहना चाहिए। तो यहाँ पे जब ये कोलॉइडल पार्टिकल और इस कोलॉइडल पार्टिकल पे, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो उनकी वजह से दोनों में रिपल्शन होगा, दूर दूर रहेंगे और दूर दूर रहेंगे तो पास नहीं आएंगे, कोलिज नहीं करेंगे और सेटल डाउन नहीं होंगे। इसकी वजह से वो स्टेबिलिटी मतलब दिस विल रिमेन इन द डिस्पर्स फेज एज कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रोवाइडेड दे हैव चार्जेस। सो स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफोबिक सोल्स इज एट्रीब्यूट टू द चार्ज। उनके अंदर चार्ज है, जब तक चार्ज है जब तक वो कोलॉइडल स्टेट में रहेंगे। जैसे ही आपने चार्ज खत्म किया, कोलॉइडल स्टेट खत्म हो गया, सस्पेंशन बन जाएगी, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। एंड द स्टेबिलिटी इज ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम ओवर द डिस्पर्स फेज। तो डिस्पर्स फेज जो होती है उसके ऊपर ही डिस्पर्शन मीडियम का जो एड्सॉर्प्शन होता है उससे शीट बन जाती है, उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन होती है।
तो लायोफिलिक सोल्स आर हैविंग ग्रेट एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, और उस एफिनिटी की वजह से उस कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर डिस्पर्शन मीडियम जो है वो आपका आके एक शीट बना देता है, या इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी होती है। सॉरी। देन तीसरा पार्ट है कि अब मुझे सोच के बता कि यार अगर किसी चीज में इंटरेक्शन ज्यादा हो जाए तो विस्कोसिटी ज्यादा होती है कम होती है? बढ़ जाती है सर। ज्यादा होती है। तो लायोफिलिक सोल की विस्कोसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। तो बेसिकली आप कहो कि मेरे पास डिस्पर्शन मीडियम था, डिस्पर्स फेज था, डिस्पर्शन मीडियम की पहले कुछ विस्कोसिटी रही होगी बिफोर मिक्सिंग। यस सर। जब डिस्पर्स फेज उसके साथ मिक्स किया तो उनके बीच और ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होंगे। स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन की वजह से जो आपका लायोफिलिक सोल बना उसकी विस्कोसिटी विल बी मोर देन द डिस्पर्शन मीडियम बिफोर द मिक्सिंग। यस सर। दैट इज द थर्ड पॉइंट रिटन, राइट। और इस केस में क्योंकि डिस्पर्शन मीडियम जैसा था वैसी एफिनिटी अभी भी है, क्योंकि इनके बीच में एफिनिटी ज्यादा है ही नहीं, तो विस्कोसिटी विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। यस सर। Surface tension will also be similar to the dispersion medium in the case of lyophobic. In lyophilic, the surface tension is much lower than that of the dispersion medium. So surface tension कम हो जाएगी because of stronger interactions. Correct? यस सर। एक और है, they exhibit Tyndall effect. What that effect is, that we'll see later, and they do not exhibit this Tyndall effect. तो lyophilic soles में Tyndall effect नहीं होता. Tyndall effect is a characteristic of lyophobic soles. याद रखो. इफेक्ट क्या है वो बाद में समझेंगे। पार्टिकल्स आर इजीली डिटेक्टेड बाय द माइक्रोस्कोप, पार्टिकल्स कैन नॉट बी इजीली डिटेक्टेड बाय माइक्रोस्कोप इन दिस केस। द स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉजेस प्रेसिपिटेशन, जैसे हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाले प्रेसिपिटेट कोगुलेट कर जाते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैव लिटिल इफेक्ट बट दे कैन हायर कंसंट्रेशन कैन कॉज देयर कोएगुलेशन। सो दैट इज अनदर डिस्टिंक्शन, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालते ही वो कोएगुलेट कर जाते हैं। यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होगा उनको कोएगुलेट करने के लिए। पार्टिकल्स माइग्रेट इन वन डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज है, चार्ज होते हैं तो पार्टिकल्स का माइग्रेशन होता है, ठीक है। ये माइग्रेट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है, अगर चार्ज है तो करेंगे, नहीं चार्ज है तो नहीं करेंगे। करेक्ट। दे आर प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट मिक्सिंग, लायोफोबिक आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, क्योंकि उनके स्टेबलाइज करने के लिए कुछ और एजेंट डालने पड़ते हैं, तो ये इरिवर्सिबल है इस वजह से। And they can be prepared by direct mixing, they are reversible. So these are the points of distinction between the lyophobic and the lyophilic sole. So सबसे key important point क्या है? Point number 2, point number 5 और point number 6. तो पहला नंबर तो चार्जेस की वजह से ही है, तो चार्जेस होंगे तो उसकी वजह से उसमें स्टेबिलिटी भी आती है लायोफोबिक कॉलॉइड्स में, ठीक है। इन केस ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड्स द चार्जेस मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट, but उनकी stability is due to adsorption of the dispersion medium on the dispersed phase. And lyophobic colloid will exhibit the Tyndall effect, lyophilic will not. Particle जो होते हैं lyophilic colloid के, lyophobic colloid के, they can be easily coagulated, but not for the lyophilic colloid. They require higher concentration of the electrolyte to coagulate them. And the last point was that कि ये basically prepare कर सकते हैं, direct mixing से नहीं बना सकते, इनको direct mixing से बना सकते हैं। ये कुछ साइज का क्या डिफरेंस होगा? क्या बेटा? साइज का मतलब कौन ज्यादा बड़ा होगा दोनों में, और कौन ज्यादा लायोफिलिक बड़े होते हैं? लायोफिलिक बड़े होते हैं। मैक्रोमोलेक्यूल होता है सर, तो फिर उसमें ऐसा क्यों लिखा था कि पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाई देते हैं? इसमें लायोफिलिक में दी पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द माइक्रोस्कोप, अगर बड़े हैं तो दिख जाने चाहिए। देखो वहां पे फर्क क्या है कि वो एक पार्टिकल जो है वो सिंपल एक ही है, मतलब एक पार्टिकल जो है वही कोलॉइडल डायमेंशन का होता है, तो वो ऐसे ही रहता है। यहाँ पे क्या होता है, कई सारे मिलके क्लस्टर मिला के बड़े हो जाते हैं। एक इंडिविजुअल पार्टिकल तो छोटा आता है, बट कई सारे मिलकर क्लस्टर बन जाते हैं। तो अभी आप समझोगे इसको, इस क्लासिफिकेशन में समझोगे इसको। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। एक होता है मल्टी मॉलिकुलर, मतलब मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल तो छोटा है, वो कोलॉइडल डायमेंशन का नहीं है, लेकिन कई सारे मिलके मल्टी मॉलिकुलर बन गया और उसका डायमेंशन क्या है, कोलॉइडल डायमेंशन है। So when on dissolution, a large number of atoms or smaller molecules of a substance with diameter less than 1 nanometer, means for true solution के dimension क्या है, aggregate together to form species having size in the colloidal range. The species thus formed are called multimolecular colloids. आई बात समझ में? Yes sir. अब जैसे ये समझ ले कि लायोफोबिक और लायोफिलिक में नॉर्मली कोलॉइड की रेंज क्या है, 1 से 1000 नैनोमीटर।
राइट। तो 1 से मान ले 200-300 नैनोमीटर तक साइज किसकी है? लायोफिलिक वालों की। और लायोफोबिक वालों की साइज वैसे तो 1 नैनोमीटर से कम थी इंडिविजुअल पार्टिकल, लेकिन काफी सारे जुड़ के वो 300, 400, 500 नैनोमीटर के, और इस वजह से वो क्या है, देख सकते हैं डायरेक्टली। यस सर। जितने भी आपके मेटल सोल्स होंगे, नॉन मेटल सोल्स होंगे, उनमें क्लस्टर्स बनेंगे, ठीक है, और वो बड़े साइज के बन जाएंगे और वो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहलाएंगे। अ मेटल सोल कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस which are clusters of several metal atoms. The atoms or molecules in each aggregate are held by van der Waals forces. Correct? यस सर। दूसरा जो है that is called macromolecular colloids. अब मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स का मतलब मॉलिक्यूल ही बड़ा है, मैक्रो है। दिस लाइक लायोफिलिक वाला पार्ट है ये। लायोफिलिक कोलॉइड जिसको हम कह रहे थे वो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड हुए इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल के टर्म्स में। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स आर देमसेल्व्स लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग कोलॉइडल डायमेंशंस and they are the polymers having high molecular masses. For example, वही होंगे, they include natural polymers such as starch, proteins, cellulose, synthetic polymers, polyesters, nylon, etc. Then we have associated colloids. अब associated colloids वो हैं जो colloidal dimension के नहीं है, छोटे हैं, लेकिन काफी सारे जुड़ के क्या बन गए, colloidal dimension के बन गए। अब आप कहेंगे इसमें और उसमें क्या फर्क है? मल्टी मॉलिक्यूलर में तो वो दो अलग चीजें हैं। यहाँ जो कोलॉइड बनता है वो एक बहुत स्पेसिफिक टाइप का बनता है। तो ये बेसिकली अगर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, अगर वो भी जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला है वो बहुत कम अमाउंट में है, तो वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। पार्टिकल का साइज जो है वो ट्रू सॉल्यूशन से कम होता है और क्लियर सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी शो करेगा, होमोजीनियस होगा। लेकिन जैसे उसमें और अमाउंट डालते रहेंगे तो उसमें काफी सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक क्लस्टर बनाते हैं। उस क्लस्टर को हम एसोसिएटेड कोलॉइडल का क्लस्टर बोलते हैं, उसको मिसल्स बोलते हैं, ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर शेप का बनता है मिसल्स। उसमें जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है अंदर की तरफ होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ होता है। तो ये जो एसोसिएटेड कोलॉइड्स हैं वो जैसे सोप या डिटर्जेंट को पानी में डालें तो कम सोप या डिटर्जेंट पानी में जाएगा तो सोल्यूशन क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और आपका एक ट्रू सोल्यूशन बनेगा। लेकिन जब ज्यादा अमाउंट सोप और डिटर्जेंट पानी में चले जाएंगे दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द associated colloid. So this type of colloids include substances which behave as true solutions at low concentration but becomes colloidal in nature at higher concentration due to the formation of aggregated particles called micelles. वही मल्टी मॉलिक्यूलर लो और हाई दोनों पे बन जाते हैं। Soaps and detergents are the examples of associated colloids, right? ये associated colloids का example है। मतलब वही मल्टी मॉलिक्यूलर लो और हाई दोनों कंसंट्रेशन पे बन रहे हो। मल्टी मॉलिक्यूलर क्या? जैसे एसोसिएटेड और मल्टी मॉलिक्यूलर में जो डिफरेंस आपने बताया उसमें मतलब यही हो रहा होगा ना कि मल्टी मॉलिक्यूलर लो और हाई दोनों कंसंट्रेशंस पे बन रहे हैं, एसोसिएटेड सिर्फ हाई पे बनता है कि जो मल्टी मॉलिक्यूलर बनता है उसका पार्टिकल साइज बहुत वेराइड साइज के हो सकते हैं, बट एसोसिएटेड कोलॉइड के पार्टिकल एक फिक्स साइज के होंगे। एक पर्टिकुलर पार्टिकल आप यूज करोगे तो, क्योंकि उसमें मिसल्स हमेशा एक पर्टिकुलर नंबर का ही बनेगा। फिर पर्टिकुलर नंबर का मतलब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल मिलके, जैसे 100 मॉलिक्यूल मिलके एक मिसल बना रहे हैं तो 100 की रेंज में होंगे, 100 होंगे, 95 होंगे, 105 होंगे, तो उसी की रेंज में होते हैं। तो एवरेज नंबर हम उसमें फिर डिफाइन करते हैं कि 100 के करीब होता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपको नॉन आयनिक है या आयनिक है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी दैट विल डू टुमारो। यस सर। ठीक है, चलिए और कुछ डाउट? थैंक यू सर। सर एक जनरल डाउट थी, पूछ सकता हूँ क्या अलग से Yes, क्लास के बारे में? हाँ हाँ सर मैं बोल रहा था सर, हम हमें अलग से एक्सेस मिली थी अभी, तो हमारे सर वो एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला वो चैप्टर है, वो अलग से आप करा सकते हो क्या क्लास में सर? मतलब मुझे नहीं समझ में आया क्या कह रहा है। मतलब सर हम सर कुछ बच्चे हैं सर, हमें अलग से एक्सेस मिली है यहाँ पे, हाँ अभी ज्वाइन हुए हैं, तो सर हमारा वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक वाला जिसमें सर मतलब टेस्ट कराते हैं ना सर, organic- वो जो टेस्ट जो बोल रहे हैं ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला जो पार्ट है वो हमारा भी नहीं हुआ है। वो करा सकते हो क्या चलो सर अभी क्लास? पहले तो ये तो होने दो यार, एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद अगला देखेंगे, करा देंगे। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहिए ना,
करा दूंगा। हाँ सर, यही बोल रहा था। ठीक है सर, थैंक यू।